Welcome to Paranabhisa's yet another podcast on a very burning and interesting topic, that is Panchkarm, its solutions and complications which we face in everyday life. And thank you everyone for joining with us today. And I am Vaidya Sonal Jiryani, fortunate to welcome very youth icon and an inspiring Vaidya, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So I welcome Vaidya Prithviraj Ugle sir for the session. Thank you sir for joining. Yes. We are very fortunate to have you with us today. So Yes. before proceeding, sir, would like to introduction of yours to everyone. Prithviraj Ugle sir. Sir is BAMS VP AMC from Sangli, MD Panchkarm from Dr. D.Y. Patil Ayurved College in 2024. Sir is been practicing as an Ayurvedic practitioner past 13 plus years. So sir has 13 plus years of experience. Sir also graduated from Institute of Business Management in Mumbai, having experience in treating diseases like thyroid, diabetes, PCOD, skin diseases, digestive disorders, arthritis, rheumatoid arthritis, spine disorders with Ayurveda and Panchkarm treatment for all kinds of diseases. Sir is also founder and chief consultant of Vishwa Swasth Ayurveda and Panchkarm Clinic, Pune, with currently 2 branches in Pune, and that is active since April 2012. Sir is currently the secretary of Ayurveda Practitioner Association and chairperson at Saturday Club since 2024. Sir is also joint secretary at Maharashtra Ayurveda Sammelan since 2022. Also deputy medical superintendent at Dr. D.Y. Patil Ayurveda Hospital and Research Center, Pimpri, Pune since 2018. And also sir पूरे भारत में 39 लैब टेस्ट होते हैं जिसमें वो पहले पंचकर्म स्पेशलिस्ट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं. Along with professional experience, sir has excelled in public speaking, leading people, and aced in problem analysis skills and hospital administration. Besides academic interest, sir devotes his time in painting and reading books. Also social works, including proud member of Rotary Club of Nigri, and conducts lectures on Ayurveda awareness in public. So thank you once again, sir, for taking out time for all of us. We are very, very fortunate to learn from your experience, and especially in the topic like Panchkarm. So I welcome you on behalf of everyone, sir. Sir, let's begin with addressing the elephant in the room, sir. Firstly, I'm very curious, like everyone else, is why Panchkarm and why is it really needed in times like these when we have such excellent medicines in Ras Aushadhi and Kash Aushadhi? Is Panchkarm really needed, sir? तो आज का टॉपिक जो पॉडकास्ट हमने चुना है वो है पंचकर्म. तो पंचकर्म क्यों इम्पोर्टेंट है आज की इरा में, ऐसा मैम ने हमें क्वेश्चन पूछा है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारा जो मोबाइल है वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक जो भी है उससे फ्लडेड है. उसमें बहुत सारी चीजें आज नई इस एरा में आ चुकी है, जैसे कि एआई आ चुका है. एआई में आगे जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर की शायद जरूरत भी ना पड़े. आज की डेट में आप ऐसा भी देख रहे हैं कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी गूगल करके आते हैं. मेरे पास बहुत बार ऐसा फोन आता है, सर मैंने गूगल किया हुआ है, मुझे विरेचन करना जरूरी है, और आप विरेचन करते हो क्या, और उसके बाद करते हो तो आपके रेट्स क्या है. बस यही पूछने के लिए पेशेंट आते हैं. वो पेशेंट जो होते हैं वो सेल्फ डायग्नोस्ड होते हैं, उनको डायग्नोसिस खुद ने किया होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करनी है वो भी उन्होंने चूज कर लिया होता है, और उनको भी बस आपसे करवाना होता है, इसके लिए वो आपके पास आते हैं. अगर ये चीज भी अगर कहीं मार्केट में मिल जाती है ऑन द काउंटर, जैसे कि कुछ मेडिसिन ओटीसी मेडिसिन होते हैं वो जैसे मिल जाते हैं ऑन द काउंटर, अगर ये भी चीज कहीं पर मिल जाती तो वो वहां पर भी करवा लेते हैं. लेकिन हमारा भाग्य अच्छा है कि आजकल पंचकर्म ऑन द काउंटर नहीं होता है, वो उस करने के लिए किसी वैद्य के पास ही हर एक पेशेंट को जाना पड़ता है. तो आगे आने वाला जो एरा रहेगा, जो आगे वाले कुछ वर्ष रहेंगे, उसमें पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास कुछ प्रोसीजर करवानी है तो ही जाएंगे. आपने जाना भी होगा कि टेस्ला, एप्पल, ये सारी जो कंपनियां हैं, जो टेक्नो सेवी कंपनियां हैं, वो क्या कर रही है आज की डेट में, आपके हाथ में घड़ी लगी हुई है,
अगर आपको हार्ट अटैक आने वाला है तो 5 मिनट पहले ही आपको बता देगी कि आपके खून में ये जो हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं या फिर बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से लगता है कि यू आर हैविंग हार्ट अटैक। सो आज के लिए आपको एम्बुलेंस का कॉल भी चला जाएगा तुरंत आपके बिहाफ पर कि यू कैन रिजर्व दिस सीट इन आईसीयू और ये पेशेंट को एडमिट करना है। ये सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया हो रही है, हो चुकी है, तो हमारे पास भी डे बाय डे ये आता रहेगा। लेकिन कुछ चीजें रहेंगी जिसके लिए वैद्य की जरूरत रहने ही वाली है हमेशा। वो क्या है? वो पंचकर्म करना है। तो जैसे पंचकर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका सक्सेस रेशो, अगर उसमें कौन से प्रकार के व्यापद हो सकते हैं, इसके ऊपर आगे हम बात जरूर करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सूत्रधार रहने वाला है वो कौन है? वैद्य। तो वैद्य का इंपॉर्टेंस कितने भी साल होने दो, कितना भी एआई आने दो, कुछ भी होने दो, तो वो वहां से गायब नहीं होने वाला। अगर आप मेडिसिन के बारे में भी जाओगे तो आप बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि ऑनलाइन डायग्नोस करके मेडिसिन परचेस करते हैं। आजकल जो हम औषधि प्रिस्क्राइब करते हैं उसका भी पूरा एनालिसिस करके ये ऐप दे देता है आपको कि मुझे ये सिम्टम्स है। अगर आप एआई नहीं यूज करते तो चैट जीपीटी आप यूज करना शुरू कर दीजिए। मैं भी कभी कभी थोड़ा यूज कर लेता हूँ। तो उसमें उसको पूछो आप कि ये सिम्टम्स है, मेरी ये प्रकृति है, ऐसा मुझे लगता है, और फिर मुझे अगर ये मेडिसिन लेना है तो फिर इज इट ओके और नॉट। तो वो आपका पूरा एनालिसिस पूछ लेता है, 4 क्वेश्चन भी पूछेगा जैसे डॉक्टर पूछता है उस तरह से, और आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दे देता है। आपके लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए उसको ट्रांसलेट भी कर देता है, या फिर आपको समझे इस तरह से उसको मॉडिफाई भी कर देता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें कितनी भी एडवांसमेंट हुई तो भी जो एक चीज है जो पंचकर्म वैद्य के लिए अबाधित रहने वाली है वो है पंचकर्म प्रक्रिया, तो जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा वैद्य को। तो ये हमें सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हुई कि आगे की थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि भविष्य के बारे में। लेकिन आज की प्रैक्टिस में जब भी हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत बार हमारे पास आते हैं, बहुत सारे मेडिसिन खाते रहते हैं। जैसे कल ही मेरे पास एक 76 ईयर की एक लेडी आई थी जिसकी जो डॉटर इन लॉ थी उसको लेकर आई थी यहाँ पर। तो वो एक्चुअली जो सारे घर वाले रहते हैं वो यूएस में रहते हैं, अभी उनको यहाँ पर आने के लिए टाइम नहीं। तो आंटी जी को खांसी थी, कम से कम जनवरी से उनको खांसी थी। उन्होंने कहा मैं 2 साल से खांसी के लिए मेडिसिन ले रही हूँ, एलोपैथी ले रही हूँ, कुछ आयुर्वेदिक भी लिया, लेकिन मुझे अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है और मुझे खास के प्रॉब्लम होती है। जैसे ही अभी ये साल में तो बारिश बहुत दिन से चल रही है, तो उनको खांसी इस टाइम में बहुत ज्यादा आ रही है। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन देना था क्या, तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसिन लेके वो फेडअप हो चुकी थी। लेकिन उनको वहां पर देखा, जब हमने ऑस्कल्ट किया तो ऑस्कल्टेशन में समझा क्या कि वहां पर हमें रोंकाई सुनाई दे रहे हैं, तो रोंकाई से म्यूजिकल साउंड्स वहां पर सुनाई दे रहे हैं, तो वहां पर हमें स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता है। जो आयुर्वेद में ग्रंथ में बताया गया है कि वहां पर अगर तिल तेल में हमने सैंधव डाला और उनको वहां पर स्नेहन किया अच्छी तरह से, अगर वहां पर स्वेदन दिया, तो वो कब जैसे हिम नदी पतली होकर उसका पानी बन जाता है उष्णता बढ़ने की वजह से, तो उस तरह से वो कफ निकल जाएगा। वहां पर ये प्रोसीजर का इंपॉर्टेंस है। वहां पर आप कितने भी मेडिसिन देंगे तो वहां पर वो पतलाहट नहीं आने वाली है। तो कुछ मेडिसिन के साथ साथ हमें प्रोसीजर वहां पर जरूरी होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, आपकी रिजल्ट्स बढ़ाने के लिए आपको पंचकर्म जरूर मदद करता है। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि मैं मेडिसिन तो लेता हूँ लेकिन ये सीजन आने पे क्यों मुझे तकलीफ होती रहती है। तो बिफोर दैट सीजन अगर आप पंचकर्म करते हैं, शरीर से दोषों को बाहर निकाल देते हैं, तो आपको वहां पर अपुनर्भव वहां पर हो सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पर पंचकर्म का तो हमेशा ही रहने वाला है। ये तो हो गई बात रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर आगे जाके आने वाले जो ईरा है उसके लिए। लेकिन उसके बाद अगर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर पंचकर्म वैद्य ये बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आजकल का जो गवर्नमेंट है या फिर जो नीडफुल है कह सकते हैं ईरा में, कि आगे जाके बहुत सारे लोग आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट होना चाहते इसका मतलब क्या है, लोग चाहते हैं कि प्रॉपर डायग्नोसिस करने वाला, प्रॉपर आयुर्वेदा का ज्ञान रखने वाला ऐसा कोई डॉक्टर हो जिसके पास में जाके ट्रीटमेंट लूं। क्योंकि जो आज आपने देखा होगा कि पतंजलि है या फिर बहुत सारी, मैंने किसी भी कंपनी का नाम लेना गलत होगा, लेकिन जो भी कंपनियां आयुर्वेद क्षेत्र में काम कर रही है 95% जो भी बिजनेस है वो कंपनियां ही कर रही है जो औषधि बनाती है, और बहुत सारी हर्बल के नाम पर भी काम कर रही है आयुर्वेद के हिसाब से। तो इनमें ये सारी चीजों में वैद्य कहाँ है, तो वैद्य का जो कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेद इंडस्ट्री में वो 1 to 2% ओनली है। बाकी 95 to 98% कंट्रीब्यूशन है वो सारी मेडिसिन कंपनियों का ही है। तो अगर ये नहीं है इसका मतलब क्या है,
ये अनइम्पोर्टेंट है इसके लिए नहीं है, ये आगे जाके आने वाली ईरा में मेडिसिन कंपनियां बहुत सारी रहेंगी, लेकिन डॉक्टर्स जो अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो बहुत कम रहने वाले, तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पर आने वाला है। अगर हम पंचकर्म करने वाले प्रॉपर वैद्य रहेंगे तो 101% आपके पास ही लोग आएंगे, क्योंकि वैसे तो मेडिसिन काउंटर पे मिलने वाली है, ऑनलाइन मिलने वाली, सभी जगह पर मिलने वाली, लेकिन आपकी स्पेशलिटी क्या रहने वाली है, वो है पंचकर्मा है। उसके सिवाय आप कौन सी प्रोसीजर मेडिसिन की सिवाय कर सकते हैं, तो पंचकर्म ही है। तो इसमें हमें याद रखना है कि जहां पर भी करियर अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब आपका प्राइवेट खुद का प्रैक्टिस रहेगा, या फिर कोई कॉलेज में आपको लेक्चरशिप करनी रहेगी कंसल्टेंट करके बहुत सारे। अभी हाँ, एक और बात आई तो उसमें कि अभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा आ चुका है, क्योंकि इंश्योरेंस के अंडर आयुर्वेदा कवर हो रहा है, तो वहां पर भी उनको अगर प्रैक्टिस करवानी है तो वहां पर मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए वहां पर तो ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स है, काउंटर है, लेकिन वहां पर पंचकर्म करने वाले वैद्य जो रहेंगे उनको वहां पर बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी रहने वाली। उसके बाद फॉरेनर्स जो रहेंगे आउट ऑफ इंडिया, जिनको प्रैक्टिस करनी है, या फिर आउट ऑफ इंडिया से जो यहाँ पर आने वाले पेशेंट्स है उनको ट्रीट करना है, तो वो क्यों आएंगे और किसके पास आएंगे? ऑनलाइन मेडिसिन का जो चीज यहाँ पर है वो वहां पर भी है, वहां पर भी उनको मेडिसिन मिल सकते हैं एज पर देयर लॉ एंड सब जो रहेगा। लेकिन उनको अगर यहाँ पर आना है तो जो अच्छा प्रैक्टिस करने वाला पर्सन है, जो वैद्य रहेगा, उसी के पास वो आना प्रेफर करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आप अगर पंचकर्म निष्णात हो जाते हैं तो आपके आगे वाले जो फ्यूचर रहेगा वो सिक्योर और सेफ रहने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पंचकर्म वैद्य आपको क्यों बनना चाहिए, इसके ऊपर मैं समझ सकता हूँ कि इनको आपको ध्यान में रखते हुए पंचकर्म प्रैक्टिस में आपने अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर स्टार्ट कर दे। भले छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, कैसे करना है इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आयुर्वेद वैद्य कहलाना है तो यू शुड बी डूइंग एंड डूइंग पंचकर्म। यस मैम। वाओ सर, आई मीन इससे बेहतर आंसर हो ही नहीं सकता था। आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया और मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए कि आगे हो सकता है हमें काय चिकित्सा की इतनी जरूरत ना पड़े, बट पंचकर्म हमेशा सर्वाइव करने वाला है। सो वेरी वेल पुट इन सर। सर एज अ यंग वैद्य, अगर किसी को इनिशियली स्टार्ट करना है पंचकर्म, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको स्टार्टिंग में उसको ध्यान रखना चाहिए सर, इनिशियल प्रैक्टिसेस में सर? यस, अगर आप पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी सबसे पहले तो आपको आयुर्वेद में जैसे कहा है कि पहले शास्त्र को पढ़ो। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप कोई डेयरिंग करने जाओगे, अति साहस करना वहां पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप पेशेंट के साथ काम कर रहे हो। यहाँ पर किसी ऐसा नहीं है कि थोड़ा चलो फाइनेंशियल लॉस हो गया तो चलने वाला है, यहाँ पर डायरेक्टली लाइफ का लॉस होने वाला है। तो पंचकर्म जैसे दिखने के लिए आसान लगता है तो वैसा आसान भी नहीं है, और जितना अगर डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। यानी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर रहेगा, लेकिन इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अगर आपको प्रॉपर ज्ञान रहेगा कि ये पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, तो वो अगर आपको डायग्नोस करना आ गया तो उसके बाद चिकित्सा देना बहुत मुश्किल बात नहीं है। यानी अगर किसी को इंजेक्शन देना आता है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन सा इंजेक्शन देना है वो जैसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसी तरह से कौन सा कर्म करना है वो डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपको प्रॉपरली ज्ञान नहीं रहेगा, अगर आप जैसे कि हमने वैद्य के गुण बताया है, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्र तो दुष्ट कर्मा शुचिर भिषक, तो इसमें से दक्ष तीर्थार्थ शास्त्र तो दूसरा नंबर का जो पार्ट है तीर्थार्थ शास्त्र तो, यानी इसका मतलब अपन प्रॉपर तरीके से अगर वो पंचकर्म सीख जाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तो पंचकर्म थेरेपिस्ट भी काम कर लेता है, लेकिन हर वक्त वहां पर जो निर्णय लेना होता है वो निर्णय ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम व्यापक के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें इसका आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पहले आपको पंचकर्म का बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से मुझे पेशेंट को डायग्नोस करना है। जैसे आयुर्वेद में बताया कि रोगम आदौ परीक्षित तदनंतरम औषधम, कौन सा मेडिसिन देना है, कौन सा कर्म करना है, ये तो सारी बात की बात है, लेकिन पहले प्रॉपर तरीके से पेशेंट को डायग्नोस करना, रोगम आदौ परीक्षित, उसकी परीक्षा करना, एक बेसिक डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको पहले शास्त्रोक्त ज्ञान उसका होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि आपको वहां पर जो लगने वाला सेटअप होना चाहिए। फिर जो आपको पंचकर्म के लिए स्टार्टअप लगता है, यानी पंचकर्म का रूम लगेगा, पंचकर्म थेरेपिस्ट लगेंगे, पंचकर्म के मेडिसिन लगेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध करनी है। इसमें हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल कोई लिमिटेशंस नहीं है, सो यू शुड गो फॉर
अच्छा पंचकर्मा का सेटअप आप अच्छे से एस्टेब्लिश करो, क्योंकि आज के एरा में कहीं पर भी आप जाओ कि अगर अच्छा सेटअप रहेगा तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। ऐसा ये प्रैक्टिकल और रियलिटी है, क्योंकि लोगों को पहले देने, अभी कल का ही बात है, मेरे पास एक लेडी का इंक्वायरी आया कि मुझे स्नेहन स्वेदन कराना है। तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है बाय अपॉइंटमेंट आप आ सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि ये हमारे रिसेप्शनिस्ट का नंबर है और आप इनसे बात कर लो, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, तो वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आप आ जाना। तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से बात की और उन्होंने उनको कहा कि मुझे आपका क्लिनिक देखना है। अभी क्लिनिक कोई देखने वाली चीज होती है? जैसे कोई मंदिर है, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन उनको पंचकर्म रूम देखना था। वो पहले आई, पंचकर्म रूम देखा, फिर उन्होंने कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों स्नेहन सदन कराना चाहते, शिरोधारा कराना चाहते। वो वेलनेस के लिए आ रहे थे, अलग बात है, लेकिन लोग आपका पंचकर्म यूनिट देखना चाहते हैं। अगर वो साफ सुथरा है, अगर वहां पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट, जैसे कि उसको अटैच टॉयलेट बाथरूम है क्या, जो पंचकर्मा के टेबल्स है वो क्लीन है क्या, आपके थेरेपिस्ट है वेल ट्रेंड है क्या, वेल ड्रेस्ड है क्या, ये सारी चीजें अगर मेट्रो सिटी में आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं आज की चीज में। तो अगर फाइनेंशियल लिमिटेशंस आपको नहीं है तो यू गो फॉर दैट काइंड ऑफ सेटअप। अगर हमें फाइनेंशियल या कोई लिमिटेशंस है तो ये सारी चीजें, इसके लिए हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, इस तरह से भी नहीं करना है। यू गो ऑन स्टार्टिंग, यानी मेरे कुछ जो मैं पंचकर्मा का इंस्ट्रूमेंट भी सेल करता हूँ, तो कुछ ऐसे मुंबई में हुए थे। मुंबई में तो ऐसा होता है कि जगह की बहुत कमतरता होती है, तो 120 स्क्वायर फीट के एरिया में क्लिनिक भी है और पंचकर्मा की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स है। तो वो हमें रुकना ही जाना है कि हमें यहाँ पर एरिया की कोई लिमिटेशन है इसके लिए, तो वहां पर आपको स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट करते हो तो फिर आगे की चीजें आती जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा करेंगे कि मेरा यहाँ पर पंचकर्मा का सेटअप ही नहीं है, तो उससे होने क्या वाला है, आपको इनकम में भी वहां पर लॉस होने वाला है। तो उसके लिए आपको वहां पर पंचकर्मा से सेटअप जो आप स्टार्टिंग में जितना भी कर सकते हो उतना करो। पहले छोटे छोटे कर्म करो, जरूरी नहीं है कि वमन करना चाहिए, विरेचन करना चाहिए, बस्ती करना चाहिए। पहले आप पेशेंट को मात्रा बस्ती तो दे सकते हो, 5 मिनट का प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, कुछ नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मात्रा बस्ती दे सकते हो, पिचू दे सकते हो, स्थानिक लेप दे सकते हो, जो भी स्थानिक चिकित्सा है वो आप वहां पर पेशेंट को कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस और रिजल्ट बढ़ेगा, और नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आएगा तो फिर वो आप जो बड़े पंचकर्म जैसे हम कहेंगे बृहद पंचकर्म, जैसे वमन है, विरेचन है, बस्ती है, उसके लिए रेडी भी होगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को आप डायरेक्टली बोलते हैं कि आपको 15 दिन के लिए बस्ती के लिए आना है, तो पहले तो उसको बस्ती क्या होता है वो पता नहीं रहता, फिर उसके बाद वो 15 दिन के लिए हर रोज आना है, उसके लिए वो टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। फिर उसके बाद वो खर्चा सुन के वो बोलता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ये उसका एक टिपिकल आंसर होता है। तो इस तरह से ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, तो इन स्टार्टिंग आपको पहले तो शास्त्रोक्त पंचकर्म सीखना है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसका जो पीछे का अंडरस्टैंडिंग होता है वो लेना है। फिर उसके बाद जो सेटअप की बात है, आप एक मिनिमल सेटअप से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल लिमिटेशंस नहीं है तो यू कैन गो फॉर अ प्रॉपर सेटअप ऑल्सो। और फिर इसके बाद जैसे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप पंचकर्मा की प्रैक्टिस अच्छे से कर जाते हो, तो फिर आगे की सेटअप, जैसे कि आप तो एक जगह पंचकर्म की रूम की जगह पर 2-3 पंचकर्म रूम कर सकते हैं, फिर आईपीडी के सेटअप में जा सकते हैं, फिर 5 बेड है, 15 बेड है, 50 बेड है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है फिर आप वहां पर ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में पंचकर्म आपको स्टार्ट करना है, भले आप स्थानिक क्रिया से चालू करो, लेकिन आपको स्टार्ट करना है। हाँ, फिर कहीं पर अगर किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ जाओ जहां पर आपको पंचकर्म के रिलेटेड मेंटोरिंग हो सके। समझो आपको कोई केस आती है, जैसे अभी रिसेंटली मेरा जो पंचकर्म का कोर्स पहले से चल रहा है, तो उसमें एक वैद्य को ऐसा परेशानी आई कि विरेचन वो कर रहे थे, तो अभी लेडी पेशेंट है, तो उनका वैसे तो डेट आने वाला था 12 तारीख को, लेकिन विरेचन के 2 दिन पहले ही अभी उनका महावारी का डेट आ गया। अभी उस टाइम पे रोके कि चालू रखे, उनको एक क्वेश्चन पड़ गया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो फिर उनको वहां पर गाइडेंस मिल गया। तो इस तरह से कोई अगर कम्युनिटी है जहां पर आपको ये कोई जानकारी हो सकती है, मालूमात हो सकती है, तो उस कम्युनिटी से आप ज्वाइन हो जाओ, ताकि इस तरह से कोई अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं या फिर कोई दिक्कत आती है तो आपको वहां पर एक अच्छे से गाइडेंस भी मिल सके। तो इस तरह से शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू ही नहीं करते हैं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो इसके लिए शुरू करो, बाद में आगे की चीजें तो आ ही जाएंगी। यस, आई थिंक बहुत सारे वैद्यों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
ऑल्सो सर, क्या पंचकर्म जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स हैं या एसओपीज हैं जिनका ध्यान हमें रखना ही चाहिए, ऐसा कुछ रहता है? हाँ जरूर। अभी जैसे आप कोई भी अगर हॉस्पिटल में एलोपैथी में जाते हो, एलोपैथी गलत सही वाली बात नहीं है, वो एक थेरेपी है और एक मोडेलिटी है ट्रीटमेंट की। तो वहां पर उन्होंने अच्छी तरह से उनके एसओपी सेट करके रखे हैं। बहुत बार हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि आयुर्वेद में अगर एक ही डायग्नोसिस के लिए एक रुग्ण 10 अगर डॉक्टर्स के पास जाता है, 10 वैद्यों के पास जाता है, तो वहां पर कम से कम 20 से 50 डायग्नोसिस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हर एक को उसके बारे में अलग अलग जानकारी लगती है। मुझे लगता है ये रहेगा, कोई कहेगा ग्रहणी है, कोई कहेगा नहीं आपको अग्निमांद है, कोई कहेगा नहीं आपको श्वास है, कोई कहेगा और कुछ है। तो इस तरह से अलग 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 तरीके से लोग वहां पर उसको ट्रीट भी करते हैं, सोचते भी है। ठीक है, कुछ चीजों में वहां पर डायग्नोसिस में डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, वो भी है। लेकिन जैसे कि अगर आप पंचकर्म करने के लिए आप डायग्नोसिस कर देते हो और वहां पर आपने पंचकर्म का प्रोसीजर अभी एस्टेब्लिश कर लिया कि इसको वमन करवाना है, तो वमन के स्टार्ट से लेकर एंड तक वहां पर आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए। यानी पेशेंट को आपने वमन एडवाइस कर दिया, तो उसके बाद सबसे पहले आपको वहां पर ये वमन के लिए अर्ह है क्या, इसका मतलब क्या, ये पेशेंट वमन के लिए इंडिकेशन उसका है क्या, अगर ये आपको डायग्नोसिस में पहले होना चाहिए। क्योंकि हमने जैसे अभी देखा था कि रोगम आदौ परीक्षित तदनंतरम औषधम, उसी तरह से पेशेंट को वमन करवाना जरूरी है। ये पहले आपने डायग्नोसिस कर दिया वहां पर, फिर उसके बाद पेशेंट को वमन क्या होता है, इससे क्या फायदे होने वाले, आपके साथ इसमें क्या होने वाला है, ये काउंसलिंग पेशेंट को करना, ये सेकंड प्रोसीजर है। एक पहले तो थॉट आपके मन में आया कि इसको वमन करना है, लेकिन सिमिलर थॉट और कॉन्फिडेंस पेशेंट में भी आना चाहिए, तो उसके लिए काउंसलिंग करना, क्योंकि आपको डिसीज क्या हुआ है, उसमें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या हुई है, फिर उसके बाद आपको वहां पर जो हम ट्रीटमेंट करवाने वाले वो क्यों करवाने वाले, उससे क्या होने वाला है, इस दौरान आपके साथ क्या होगा, ये सारा पूरे पेशेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। आप मुझे याद दिलाएगा, मेरा एक पेशेंट का एक रिव्यू है, मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड पे, तो जहां पर पेशेंट को पूरी तरह से प्रोसीजर खुद पेशेंट उसके रिव्यू में एक्सप्लेन करेगा। यानी उस तरह से पेशेंट का अगर एजुकेशन हो जाता है तो फिर हमें क्या समझ में आएगा कि पेशेंट इज वेल अवेयर अबाउट द प्रोसीजर। उसमें फिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस तरह से पेशेंट घबरा नहीं जाएगा, यानी उसको पहले से वेल इन्फॉर्म रहेगा। तो वो पेशेंट का काउंसलिंग होना जरूरी है। फिर उसके बाद अगर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से कुछ पंचकर्म करवाना है तो उसमें हमें पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। बहुत बार हम ये पार्ट मिस कर देते हैं, आयुर्वेद में इन्वेस्टिगेशन थोड़ी होते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें होती है। जैसे हमारे जो आचार्य थे, हमारे जो पुराने वैद्य थे, जो नाड़ी परीक्षा करते थे या फिर उनको कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान से कुछ चीजें मालूम भी पड़ती थी, लेकिन आज हम अल्पमति वैद्यों में से आज हम वैद्य है जिनके लिए इतनी सारी संहिताएं वैद्य हमारे पूर्वजों को लिखनी पड़ी। तो उनके लिए हमें थोड़ी चीजें अगर फिजिक्स के अपडेशन की वजह से मालूमात हो जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मेरे साथ के बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे, जैसे कि एक कपल आता था मेरे पास बहुत सारे दिनों से, कुछ जब भी कोई छोटा मोटा जुकाम भी हो जाता है तो आ जाता था, लेकिन जब से मैंने 4-5-10 साल से इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया, तब मैंने उनको एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन बता दिया, तो दोनों का HbA1c 11। अभी ये अगर हम सोचते भी नहीं, डायबिटीज जैसे कहते हैं हम साइलेंट किलर है, अगर हमको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बोलते ही नहीं तो फिर उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे डायबिटीज है। तो उसका हमारे आयुर्वेद के हिसाब से इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है, उसको ट्रीटमेंट क्या देनी है, पंचकर्म कौन सा करना है, दैट इज अनदर पार्ट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। अभी हाल ही में एक केस हुई थी मुंबई में, अगर आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जहां पर पेशेंट का काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं था और पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं था, तो रक्त मोक्षण जो सिंपल प्रोसीजर है, जो ब्लड डोनेशन, तो बहुत सारे कैंप होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम जग से कुछ निराला कर रहे हैं, लेकिन अगर बस एक 100 ml ब्लड निकालने के बाद पेशेंट को 1 महीने के लिए वहां पर एडमिट होना पड़ा या फिर उसको जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने पड़े, उसने सोशल मीडिया पर वैद्य के बारे में जो कुछ कहा, ये सारी चीजें हुई थी। अगर केस नहीं पता है तो बस उसका मतितारत हम ये ले लेंगे कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग और उसका इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर तरीके से, उनका HB कुछ तो 4-5 था और हमने वहां पर ब्लड लेटिंग किया, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पेशेंट का मॉरल डाउन हो जाता है, मेरा HB 5 था, डॉक्टर ने चेक भी नहीं किया और मेरा ब्लड लेटिंग कर दिया। तो इसके लिए बेसिक CBC तो करना, यूरिन रूटीन करना, ये सारी चीजें, अगर आप वमन के लिए जा रहे तो बेसिक ECG करवाना, ये अगर आप चीजें करवाते हैं तो क्या होता है कि पेशेंट के इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि डॉक्टर इज फॉलोइंग प्रॉपर SOP। अभी मेरे पास एक
जिसका आज भी पंचकर्मा यहाँ पर पंचकर्मा चालू है, तो उनका ऐसा था कि उनको थाइज रीजन में बहुत सारा पेन था। तो वो कह रहे थे कि मुझे 2 साल से पेन है सब, जब भी मैं बैठ के उठता हूँ या फिर कोई मूवमेंट करने जाता हूँ तो मुझे पेन होता है, बाकी रेस्टिंग में मुझे कोई पेन नहीं। अगर हम इसमें कहेंगे तो शिरास्नायुगत वात या फिर आमवात या साम संधिगत वात, इस तरह से हम संधियों में उसको पेन नहीं था, मांसपेशियों में था। तो इसमें उसने कहा कि मैंने बहुत सारे मेडिसिन 2 साल से लिए, ये डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर के पास गया, कुछ एलोपैथी डॉक्टर के पास में गया था, तो यानी किसी डॉक्टर के पास गया था। तो वहां पर ऐसा भी हुआ कि उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया और उसको अल्सर्स हो गए और उसको थ्रू लैट्रिन खून आने लगा। अभी ये उस मेडिसिन का उसके साथ संबंध रहा भी होगा या नहीं भी रहा होगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं किए थे और डायरेक्टली उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो मेरे यहाँ पर आने के बाद मैंने उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस किया, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बोले, प्रॉपर तरीके से उसकी केस हिस्ट्री ली। तो जो मेरा अभी नया हॉस्पिटल का काम चल रहा है, वहां पर जो प्लम्बर है उसका वो मामा है। तो उन्होंने कहा कि थ्रू प्लम्बर मुझे उसका ये फीडबैक मिला कि मुझे रिजल्ट आए ना आए मैं इसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पूरी तरह से आधे घंटे सुना, मेरा प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस किया, मेरी इन्वेस्टिगेशन कराए, उसमें कुछ है नहीं देखा और फिर मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। और अभी उनका छठा बस्ती है, तो उनको 60 to 70% उनको रिजल्ट आ गया। तो जैसे एसओपी का आगे का पार्ट है कि इन्वेस्टिगेशन हुए, फिर उनको एक्सप्लेन किया गया कि आपको कितने बजे आना है, साथ में क्या लेकर आना है, क्या नहीं लाना है, उसका प्रॉपर तरीके से कंसेंट भरवाया गया। फिर उसके बाद पेशेंट को एक पेपर दिया गया जिसको आपको क्या क्या नियम उसमें फॉलो करने, साथ में आते वक्त क्या लेकर आना है, ड्यूरिंग पंचकर्मा आपको क्या खाना खाना है, आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से आपको कुछ नियम फॉलो करने, ये सारा उसको एक्सप्लेन किया गया। फिर उसके बाद जब भी पेशेंट पंचकर्मा के लिए आता है तो उसका बिफोर पंचकर्मा आफ्टर पंचकर्मा बीपी लिया जाता है, वेट लिया जाता है, या फिर उसका जो दिन भर में उसने क्या खाया, दिन भर में सोया, प्रवास किया यानी कुछ ट्रैवलिंग किया रहेगा, ये वो सारी चीजें जो उसके पंचकर्म के ऊपर अफेक्ट कर सकती है, उनका प्रॉपर तरीके से एक डेटा लिया गया। और उसको ये भी पूछा गया कि आज आपकी कंप्लेंट कितनी बेहतर हुई है, यानी आपको अगर पेन हो रहा था डे 1 में 100% था, तो आज की डेट में कितना है, तो फिर वो बोलेगा 60% है, 40% है, 20% है, 0% है, जो भी है प्रोग्रेस रिपोर्ट उसका वहां पर वो मेंशन होता है। फिर एट द एंड जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपके सामने जब बैठता है तो आप उसको बोल सकते हैं हाँ, आपका जब स्टार्ट हुआ था वहां से लेकर अभी तक ये 8 दिन में 80% रिड्यूस हुआ है। सो पेशेंट इज क्लियर है, उसको हर रोज खुद ही बताना कि मुझे कितना रिलीफ मिला है। तो अगर इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से उसको एसओपी फॉलो करते हैं तो फिर पेशेंट्स में अगर कॉम्प्लिकेशन हो भी जाते हैं तो पेशेंट को ये पता रहता है कि डॉक्टर इज वेल एग्जामिनिंग मी, उसका मेरे ऊपर ध्यान है, हर चीज डॉक्यूमेंट होती है, और अगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो वो रेडी रहता है उसमें जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट करनी है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं तो वो, क्योंकि हमारा पेशेंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से हर चीजों में हमें एसओपी फॉलो करना जरूरी होता है। फिर बाकी जो प्रोसीजर रहेंगी जिसमें समझो कि वमन है तो उसमें स्टार्ट में क्या करना है, बीच में क्या करना है, एंड में क्या करना है, पश्चात कर्म में क्या करना है, वो तो हर एक प्रोसीजर की एसओपी जरूर रहेगी। लेकिन कोई भी जनरल पंचकर्म करने से पहले से लेकर स्टार्ट में जो कुछ बेसिक हमें करना है एज अ प्रोफेशनल इथिक्स, वो भी हमें वहां पर उसकी भी एसओपी होनी चाहिए, ताकि पेशेंट का ट्रस्ट और डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, ये अगर दोनों चीजें है तो फिर वहां पर रिजल्ट आने ही आने। अगर नहीं भी आए तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने, तो फिर उसमें कोई आगे का डायग्नोसिस होगा, आगे की ट्रीटमेंट होगी, कहीं रेफर करना पड़ेगा या फिर कोई बड़ी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वो देखा जाएगा। लेकिन वहां पर वो जो रिलेशन है वो मेंटेन रहेगा, भले आपके पास उसके रिजल्ट आए ना आए। तो इस तरह से हमें ये बेसिक एसओपी फॉलो करनी है। फिर जो भी प्रोसीजर रहेगी उस प्रोसीजर में, जैसे आचार्य ने कहा है कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे एलोपैथी में होता है उसी तरह से हमें यहाँ पर भी करना है। तो जैसे कि कोई अगर कर्म करना है तो उसके लिए कौन से मेडिसिन लगने वाले, अभी हम अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर आके खड़ा होता है फिर बोलता है वो कॉटन कहाँ है, तो बोलती है नहीं बाजू के रूम में पड़ा है, फिर बोलेगी नहीं मुझे सीजर चाहिए, तो नहीं सर कल धोने के लिए दिए थी मौसी को, अभी उसने धोई नहीं है। इस तरह से वहां पर नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पर वैसा होता है बहुत बार। तो इस तरह से ना हो, इसके लिए प्रॉपर उसका एसओपी में क्या क्या मेडिसिन आपके साथ होने चाहिए, रूम की तैयारी क्या होनी चाहिए, पेशेंट की तैयारी क्या होनी चाहिए, ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होना है, आफ्टर प्रोसेस पेशेंट को क्या करना है, ड्यूरिंग प्रोसेस क्या करना है, और उसको घर जाने के बाद क्या क्या हो सकता है, उसको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करना, ये सारी एसओपीज आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो आप निश्चिंत होकर प्रैक्टिस कर पाओगे। नहीं तो हर बार आपका पेशेंट का फोन आएगा, सर इसमें क्या करना है, ये खाओ कि नहीं खाओ,
ये सारी चीजें आपको फिर आपके पास 1-2 पंचकर्म हो रहे तो ठीक है, अगर हर रोज के 10-20 पंचकर्म हो रहे तो कितने फोन हैंडल करोगे आप? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, हर एक चीज के लिए एसओपी वहां पर होनी चाहिए। यस, मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया सर। और जितने भी वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके भी क्वेश्चंस हैं सर, लास्ट में ओपन सेशन रहेगा फॉर एवरीवन टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप लोग आखिरी में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मूविंग अहेड सर, जैसे आपने कॉम्प्लिकेशंस का कई बार जिक्र किया, तो कोई वैद्य है जिसने शास्त्र का नॉलेज भी ले लिया, एसओपीज भी फॉलो कर लिए, फिर भी वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ और कॉम्प्लिकेशंस होना नेचुरल तो नहीं है बट हो भी सकते हैं, अनफॉर्चुनेट हो भी सकते हैं। सो पहले तो किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं पंचकर्म में, और दूसरा अगर आ गए तो उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है सर? यस, तो कॉम्प्लिकेशंस अगर नहीं होंगे तो आप यानी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होता है। कॉम्प्लिकेशंस इसका मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती है कि आपके कंट्रोल में नहीं होती है, या फिर आप जिस तरह से एक्सपेक्ट करते हो वहां से नहीं होती है। जैसे आप अच्छे से गाड़ी चलाना सीख लेते हो, लेकिन आप ये गारंटी दे सकते हो कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता? नहीं दे सकते ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि भले आप सही तरीके से चला रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं चला रहेगा, या फिर रास्ते में गड्ढे रहेंगे जो आप नहीं दे सकते, या फिर किसी से पीछे से आकर ठोक दिया, जो भी है। तो उस तरह से जो एक्सीडेंट होना जैसी चीज है वहां पर उसी तरह से कॉम्प्लिकेशन होना चीज है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है फिर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है फिर भी आप वहां पर गाड़ी चला रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। इसका मतलब क्या है कि आपको उसके चीज का ज्ञान प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यानी आपके पास वो करने का लाइसेंस, जैसे हम कहेंगे गाड़ी चलाने का रहेगा, उसी तरह से आपके पास वो पंचकर्म करने का लाइसेंस कहेंगे, या फिर वो ज्ञान होना चाहिए आपके पास। ये पहली चीज है। तो अगर जैसे हमने कहा था कि कोई भी चिकित्सा अगर सक्सेसफुल होनी है तो वहां पर 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमने कहा कि वहां पर वैद्य इंपॉर्टेंट होता है, परिचारक इंपॉर्टेंट होता है, औषधि इंपॉर्टेंट होती है, और रुग्ण इंपॉर्टेंट होता है। ये चिकित्सा के चतुष्पाद हैं। तो इन चारों चीजों के अगर सही होने से वहां पर चिकित्सा सफल होती है, तो इनमें से कोई एक गलत हो जाता है तो वहां पर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। समझो, हमें जो भी वमन पंचकर्म करना है, विरेचन पंचकर्म करना है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वैद्य, जैसे हमने कहा था। तो उसमें वैद्य जो निर्णय लेता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो वहां पर उसके पेशेंट के पूरे प्रोसीजर के ऊपर अफेक्ट करते हैं। समझो कि पेशेंट का स्नेहपान करवाना है, तो कितनी मात्रा में करवाना है, उसको खाने के लिए देना है तो उसमें क्या खाने के लिए देना है, समझो कब रोकना है उसका स्नेहपान। अगर पेशेंट को हमें वमन के दौरान अगर वेग आ रहे तो वहां पर उसको और आगे स्नेहपान अभ्यंतरपान देना है कि नहीं देना है, उसको अगर ज्यादा वेग आ रहे तो फिर हमें क्या मेडिसिन देनी है, या फिर उसको पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम देना है तो फिर 1 दिन का देना है, 3 दिन का देना है, 7 दिन का देना है। ये सारे डिसीजन जो होते हैं, निर्णय जो होते हैं, वो कौन लेता है? तो वो वैद्य लेता है। तो इसके लिए वैद्य को ये सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वैद्य वहां पर गलती कर देता है तो बाकी सारी चीजें अगर सही भी है, मेडिसिन भी क्वालिटी अवेलेबल है, पेशेंट भी सुनने वाला है, परिचारक भी हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी अगर वैद्य ने डिसीजन गलत ले लिया तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यानी समझो कि पेशेंट का क्रोष्ठ मृदु है और हमने वहां पर पेशेंट को इच्छा विधि देनी नहीं है, वहां पर उसको अरगवत कपिला या फिर गंधर्वहरितकी या फिर उसको कह सकते कि एरंडी के तेल से भी उसको विरेचन हो जाता है। इसको दूध पीने से ही उसको विरेचन हो जाता है, उसको तो एरंडी का तेल बहुत हो गया। तो वहां पर अगर हमने मिस डायग्नोस करके मृदु कोष्ठ है ना दिखते हो अगर इच्छा विधि दे दी तो पेशेंट को अतियोग हो जाएगा। तो यहाँ पर उस मेडिसिन की गलती थी क्या? नहीं। परिचारक की गलती थी क्या? नहीं। पेशेंट की गलती थी क्या? नहीं। गलती किसकी थी? वैद्य की थी। तो हमें क्या होना चाहिए? उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये वैद्य का हो गया। फिर उसके बाद जो परिचारक है, हमने तो बोला है कि इसको 10 मिनट के लिए स्वेदन दो, लेकिन पेशेंट ने बोला नहीं अच्छा लग रहा है, जो 15 मिनट लेते हैं, 20 मिनट लेते हैं। तो परिचारक ने बोला हाँ ठीक है, उसको अच्छा लग रहा था तो मैंने 20 मिनट के लिए उसको स्वेदन दे दिया, चलेगा क्या? नहीं। उसको हाइपरबस्पिरेशन होने की वजह से उसको क्या हो सकता है? वहां पर डिहाइड्रेशन हो सकता है, फेंटिंग हो सकता है। पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में, उससे बात करती रहनी चाहिए। अगर स्वेदन कर रहे हैं तो उससे बात ही नहीं कि थेरेपिस्ट कहीं और जाके बैठा है, मोबाइल पे कुछ काम कर रहा है, तो जिससे क्या हो सकता है कि पेशेंट को चक्कर आ गया, वो वहां पर उसने कॉन्शियसनेस का चला गया। अगर ये हमें देखा ही नहीं तो वहां पर ये परिचारक की गलती है। अगर उसको वहां पर हम बस्ती दे रहे हैं तो बस्ती का कैथेटर किस तरह से अंदर जाना चाहिए, टुवर्ड्स द स्पाइन डायरेक्शन अगर जाना चाहिए, उसको पता नहीं रहेगा तो फिर वहां पर वो गुदा में क्षत उत्पन्न करने वाला है। या फिर
जो तेल है अगर ज्यादा गर्म नहीं करना है तो उसने ज्यादा गर्म कर दिया तो फिर वहां पर दग्धव्रण होने वाला है। तो ये सारी परिचारक की वजह से होने कॉम्प्लिकेशन है। फिर मेडिसिन है, जैसे बहुत बार ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भले सारी चीजें हम अच्छा परिचारक लाएंगे, अच्छा वैद्य काम कर रहा है तो वो तो मनीषा उसकी रहती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसके पास जो मेडिसिन है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आता है, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है कि मेरे पास रेगुलरली पंचकर्म होते नहीं, एक पिछले साल की इच्छा भेदी पड़ी थी तो वही मैंने पेशेंट को दे दी, तो हीनवीर्य औषधि अगर हम पेशेंट को दे देते तो उसी तरह से रिजल्ट एक्सपेक्ट करना गलती होगी। तो वहां से वहां पर जो भी हम मेडिसिन यूज करेंगे तो प्रॉपर मात्रा में और पोटेंट और सही डोज के साथ पेशेंट को अगर उसका कोस्ट देखकर दिए जाते हैं तो वहां पर रिजल्ट आने ही वाले। लेकिन जैसे कि औषधि हीनवीर्य है तो वहां पर अयोग होने वाला है, अगर वहां पर मेडिसिन का डोज ज्यादा हो गया तो वहां पर अतियोग होने वाला है, तो वहां से वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अभी चलो ये भी मान लेते कि वैद्य भी अच्छा नॉलेजेबल है, वो प्रॉपर तरीके से काम भी करता है, परिचारक भी सुनने वाला है, जो भी उसके गुण है तो वो सारे गुणों से युक्त है, मेडिसिन भी अच्छे क्वालिटी का है, सब है। लेकिन अगर जो पेशेंट है, अगर वो पेशेंट ही अगर खुद को डॉक्टर समझने वाला, वैद्य मानिनस्य जैसे हमारे ग्रंथ में बताया है कि जो मुझे सब पता है, मैंने पंचकर्म किया है, मुझे ये पता है, मैंने बहुत बार किया है, मुझे सब आता है, ऐसा कहने वाला अगर पेशेंट रहेगा तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है। या फिर बहुत साहसी जो होता है, चंडस्य असूयकस्य, चंडस्य इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत साहसी होता है, कुछ नहीं होता मैं जाके आता हूँ मुंबई, मेरा एक काम है, थोड़ा सा अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको कहा है कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है लॉन्ग डिस्टेंस का, तो फिर भी वो कहता है कि चलो मैं सुबह जाता हूँ और शाम तक मेरा बस्ती है, तब तक मैं वापिस आ जाता हूँ। इसके दौरान वो बाहर जाएगा, कुछ वड़ा पाव खाएगा, ठंडी एसी में ट्रैवल करेगा, उसका स्ट्रेस टेंशन लेवल रहेगा, उसके खाने के टाइमिंग्स बिगड़ेंगे, इसकी वजह से दोषों की कोष्ठ की गति बिगड़ने वाली है, वो उसका ज्ञान उसे नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, वहां पर भी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। तो ये जो गलतियां पेशेंट की साइड से होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें फिर से एक बार रोल आता है, जैसे कि भले रथ में 7 घोड़े लगे हो, लेकिन जो सारथी होता है उसको सबको लगाम हाथ में रखनी होती है। तो इस तरह से पेशेंट का काउंसलिंग करना, उसको बार बार बताते रहना कि वो अति साहस ना करे, जो भी है वो सारी चीजें काउंसलिंग करके उसको बताते रहना, ये वैद्य का काम रहता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन इसके लिए कौन होता है, कि वैद्य होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, 4 लोग जो होते हैं इसमें से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनमें से कोई अगर एक गलती कर देता है तो फिर वहां पर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन ऐसे डरने वाली बात नहीं कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो फिर हमें पंचकर्म ही नहीं करना है, ये बहुत कोई बड़ी बला है, इसको हमें जाना नहीं इसकी तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पहले तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे ट्रीट करने हैं इसका अगर हम ज्ञान रखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन जब सामने आएंगे तो वी विल बी अवेयर, या अगर ऐसा हो जाता है तो ये करना है मुझे पता है, तो इसके लिए पहले उसकी भी हमें तैयारी करनी रहती है। तो इसलिए उसके डरना नहीं है। यानी किसी भी पेशेंट को एनाफिलैक्सिस शॉक आ सकता है अगर आप कोई इंजेक्टेबल दे रहे, इसका मतलब जो जनरल प्रैक्टिशनर आज प्रैक्टिस करे तो उन्होंने इंजेक्टेबल देना ही नहीं है क्या, तो दे रहे, लेकिन उसको अगर ट्रीट करना है तो उसको 2-3 मेडिसिन जो देने पड़ेंगे, या फिर जब उसको आगे का जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है मुझे अगर पता रहेगा तो फिर मैं दिन में 10 बार 50 बार इंजेक्शन दूंगा। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है इसका अगर हमें ज्ञान रहेगा तो वो कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, थोड़ा क्या होता है इसमें एक्सपीरियंस, जो कहते हैं ना, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्म शुचिर भीषक। दक्ष इसका मतलब क्या है, अभी क्या करना चाहिए, तो ये जिसको पता है, दक्ष है, जो अवेयर है, वो अगर वैद्य का गुण इसमें है तो फिर उसमें क्या होने वाला है कि उनको अभी जैसे कि मेरे पास वमन चालू रहता है तो आगे उसको आकंठपान देना है कि रुक जाना है, ये पेशेंट का पूरा जो सिनेरियो होता है उसमें वैद्य को ये हमेशा देखते रहना है। बाकी परिचारक लिखते रहेगा 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, ये कहेगा पित्त की नाड़ी है, वो कहेगा सर ये कफ पतन हो गया, वो कहेगा सर पेशेंट को स्वेटिंग आ रहा है, लेकिन ये सीन में करना क्या है वो जो है वो वैद्य का काम है। अगर उसको पता है कि यहाँ पर रुकना चाहिए, पेशेंट को फेंटिंग हो रहा है, तो फिर वहां पर देखना चाहिए। मेरा पहले वमन का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, कॉम्प्लिकेशंस का बात आया तो मेरा जो सबसे पहला प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद खुद इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किया हुआ जो वमन था, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनको हमने वमन एक ही दिन में प्लान किया था। तो हस्बैंड का वमन चल रहा था अंदर पंचकर्म रूम में, उस टाइम 2012 में मेरे पास कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं होते थे, स्टूडेंट्स भी नहीं होते थे, तो मैं अकेला ही कंडक्ट करता था। हस्बैंड का स्नेहन सदन हो गया, उसको वमन के लिए मैंने औषधि दे दी, तो उसको वमन का वेग आ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था, उसको थोड़ा सा जी मसलाना वगैरह हो रहा था।
तो उसके दौरान पेशेंट ने ऐसा फेंटिंग हो गया उसको। अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो उसको पकड़ू कि वो अंदर जाके हेमगर्भ की मात्रा लाओ, उसको चटाओ, क्या करूं, कि उसी दौरान उसको एक जोरदार उल्टी का वेग आ गया, तो जिससे वो पूरी तरह से फ्रेश हो गया। इसमें अगर मैं वहां पर उल्टी का वेग आने का वेट नहीं करता और उसको कुछ नहीं, इसको सलाइन देना चाहिए, उसको आगे कुछ भेजना चाहिए, इस कॉम्प्लिकेशन हो गया, अगर ये मुझे पता ही नहीं रहता है, मैंने कभी वमन देखा ही नहीं, ऐसा होता, तो फिर क्या हो जाता कि उसको मैंने कोई और कॉम्प्लिकेशन में उसको दे दिया होता, क्योंकि दोष ऊपर आ रहे, वो आपके मज्जा की संस्था के ऊपर आवरण कर रहे, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकल जाते हैं तो उसको फ्रेश लगने लगता है। तो उस तरह से ये एक्सपीरियंस होना आपको जरूरी होता है। ये बहुत बार फिर आगे हुआ, लेकिन उस टाइम हम डरे नहीं, उसके बाद हमें पता था कि उसको बस उल्टी आना चाहिए, यस यू आर डूइंग गुड, वेरी गुड, गुड, पियो पियो, इस तरह से हमें उसको पूरी तरह से बूस्ट करते रहते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि पेशेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ डॉक्टर जो करेंगे वो करना है। ऐसा भी कभी कभी हुआ है कि एक आध पेशेंट होता है कि जिसको हमने अखंडपान तो दे दिया, उसको कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं हुए, लेकिन वो आगे उल्टी जब आने लगती है तो वो जो नौशिया की फीलिंग होती है, उस फीलिंग को देखकर बोलता है मैं आगे नहीं पीने वाली। एक लेडी थी जिन्होंने, इन्हें उसको 10 साल हुए रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो उठकर खड़ी हो गई, मुझे अभी वमन ही नहीं करना है। अभी उसको ऑलरेडी वमन का चाटन दिया हुआ है, उसके बाद 1-1.5 लीटर उसने काढ़ा भी पिया हुआ है, अभी फिर उसके बाद मैं नहीं पीने वाली, यानी नहीं पीने वाली। तो वहां पर ये स्टार्टिंग के डेज थे, तब हम क्या करते थे कि ऐसा सब था, तो हमारे ठोमरे सर थे जिनके पास मैं वमन सीखता था, तो उन्होंने कहा था कि वमन करवाना इसका मतलब क्या होता है कि किसी छोटे बच्चों का डांस सेट करने जैसा होता है। वो प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन जब स्टेज पे जाएंगे तो कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी कोई रोने ही लगेगा, कोई नहीं मम्मी के पास ही जाना, इस तरह से करेगा। तो इस तरह से पेशेंट भी करते हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पेशेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना। अगर वो हम करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, प्रॉपर तरीके से कोष्ठ का ज्ञान रखते हैं, जैसे हम कोर्स में वगैरह सिखाते हैं कि उसमें कोष्ठ परीक्षण किस तरह से करना है, कोष्ठ गति क्या होती है, दोष ऊपर आते हैं इसका मतलब क्या होता है, दोष कोष्ठ में आते हैं इसका मतलब क्या होता है, शाखा गति क्या होती है, वमन में उदर्द हो जाता है तो ये क्यों होता है, अजीर्ण हो जाता है तो क्यों होता है, ये सारी चीजें कोर्स में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उस तरह से सारी चीजें आपको अगर प्रॉपर से ज्ञान रहेगा तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए डरने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैनेज हो सकते हैं। यस, वेल पुट इन सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को अब कॉन्फिडेंस आया होगा, इंक्लूडिंग मी, टू स्टार्ट द पंचकर्म प्रैक्टिसेस, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेशन होगा इसके ये सोच के हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, बट आपने जिस तरीके से बताया स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है, एंड थैंक यू फॉर द इनसाइट सर। सर, लोग पंचकर्म कराना भी चाहते हैं, आजकल अवेयरनेस भी बढ़ गई है, बट प्राइसिंग डिसाइड करना कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग पहले तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए टू डिसाइड कि क्या चार्जेस कहाँ पे कैसे लेने चाहिए, बिकॉज इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, तो प्राइस पॉइंट कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? प्राइसिंग तो हर एक जगह पर वेरी हो सकता है, जैसा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पर, जैसे कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका, लेकिन मेरे पास आजू बाजू के लोग जो है वो 1,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, मैं तो 10,000 चार्ज नहीं कर सकता वहां पर, इतना तो प्राइस डिफरेंस हम रख नहीं सकते हैं। तो आपके एरिया में जो प्राइस चल रहा है इसके हिसाब से हम सोच सकते हैं, या फिर अगर आप इंश्योरेंस वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहां पर तो प्राइसिंग हमारा कुछ भी रहे, लेकिन वहां पर प्राइजेस अप्रूव करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी से या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है उनसे। तो फिर हम अगर वहां पर काम करें तो उसके हिसाब से ही प्राइसिंग चलने वाला है, हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला। लेकिन अगर वहां पर नहीं जाना है, कोई इंश्योरेंस का अगर वहां पर अगर रिलेशन नहीं है, तो उस केस में हम प्राइसिंग किस तरह से कर सकते हैं, मैं एक आपको स्लाइड शेयर करता हूँ तो जिसमें हम ये थोड़ा सा समझ लेंगे। हाँ तो ठीक है, चलो अभी थोड़ा हमें एक बस्ती का पंचकर्म जो होता है, एक सेशन का निरोग बस्ती जिसे हम कहेंगे, उसका अगर हम प्राइसिंग करना है तो किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए मैं जो सिखाता हूँ कोर्स में वो एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि अगर आप, चलो कि आपके सेटअप का कॉस्ट कितना होता है, अगर आपको वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, तो समझो कि मेरे यहाँ पर अगर आप एक सेटअप जहाँ पर रेंट है 25,000, लाइट बिल आपको अप्रोक्सीमेटली 2,000 आ जाता है, लेफ्ट साइड का छोटा बॉक्स है उसमें लिखा है, वाटर बिल आपको 500 रुपीज चार्ज होता है, क्लीनिंग का चार्जेस पर मंथ आपके पास, मेरे पास अभी 2 क्लीनिंग के स्टाफ आते हैं सुबह और शाम को, तो उनका 2,000 प्लस 2,000 4,000,
इस तरह से फ्यूल कॉस्ट यानी सारे आपके कुछ मेडिसिन लाना आना आपका जाना है ना, सारे अगर पकड़ लेते हैं आप तो 2000 समझो कि आ जाता है। पंचकर्मा इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट यानी आपका जो सेटअप का कॉस्ट है वो समझो कि सारा आपका जो सेटअप वहां पर किया है, पंचकर्मा का टेबल रहेगा या फिर आपके जो सारा जो आप पेशेंट के लिए यूज करोगे जो भी है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट, वो समझो कि 20 लाख रुपीज जो आपने खर्च किए हैं और उसके बाद ये 20 ईयर्स के लिए चलने वाला है ये सारा इंस्ट्रूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट। तो इसका अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं पर, तो ये अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आ जाएगा 8,333। अगर इसको सारे चीजों को हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाता है 41,833। इसका मतलब ऑलमोस्ट 42,000। अगर इसको हम डिवाइडेड बाय 25 डेज हम ये काम कर रहे हैं, इसको हिसाब से अगर देख लेते तो ये पर डे का कॉस्ट आएगा 1394 और पर आवर का कॉस्ट आएगा 175 रुपीज। यानी आपके पंचकर्म का जो रूम है उसका पर आवर कॉस्टिंग है 175 रुपीज। अगर आप वहां पर 175 पर एक आवर के लिए आप उसको अगर खुला छोड़ देते हो यानी वहां पर कोई पेशेंट नहीं चल रहा है तो यू लॉस्ट योर 175 रुपीज। यानी इसमें से देख रहे हैं आपके 1 to 6 जो पॉइंट्स है वहां पर पेशेंट आए या ना आए आपको ये कॉस्ट बियर करना ही। रेंट तो जाने ही वाला है, पेशेंट आए ना आए। लाइट बिल थोड़ा बहुत ऊपर नहीं आ सकता है लेकिन इतना तो अप्रोक्सीमेटली आ ही जाता है। वाटर बिल तो आना ही है। क्लीनिंग के लिए आपके पास पेशेंट आए ना आए आपको मौसी को तो पगार देना ही देना है। फ्यूल कॉस्ट आपको जाके बैठना है, मेडिसिन लाने के लिए तो जाना पड़ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड। तो ये सारी चीजें जो है तो 1 आवर के लिए आपको 175 रुपीज, ये मेरे एरिया का है। आप आपके नंबर्स डाल के आपका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपने कैलकुलेट किया तो आपके यहाँ पर 150, 200, 250, 300 एज पर योर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके यहाँ पर जो महंगाई का है उसके हिसाब से ये कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। अगर इसको हम ले लेते हैं और फिर अभी आते हैं अपना मेन पंचकर्म बस्ती का जो है उसके ऊपर मटेरियल कॉस्ट है ये 399 पकड़ा है। इसका मतलब क्या है, आयुर्माइंड हेल्थ केयर के जो मेडिसिन आते हैं पंचकर्मा की यानी हमारी जो कंपनी है आयुर्माइंड हेल्थ केयर, उसमें हम मेडिसिन भी डॉक्टर्स को सेल करते हैं। तो उसमें ये 339 रुपीज का एरंडम मुलादी निरोबस्ती का एक सेक्शन का किट आ जाता है। तो उसका कॉस्ट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। मैन पावर कॉस्ट अभी ये थोड़े दिन पहले का है, 400 रुपीज पर सेशन। एक थेरेपिस्ट अगर ऑन कॉल आ जाता है आपके पास तो वो हमारे यहाँ पर चार्ज करता है। अभी वो बढ़ के 500-700 भी हो चुका है, लेकिन हमने अगर मिनिमम अगर आपको पहचान वाला है तो उसको भी 400 रुपीज आपको कॉस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट जैसे आपने अभी कैलकुलेट किया तो 175 रुपीज रहने वाला है। फिर उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, आप जो कुछ फ्लायर्स बनाते हो, इंस्टाग्राम पे कुछ डालते हो या फिर जो भी आपका कोई हैंडबिल्स आप छपवाते हो, कोई होर्डिंग लगाते हो, उसका अगर आप एक सेशन के लिए अगर उसका कैलकुलेट जैसे हमने इसका भी किया तो उसका अगर कैलकुलेट कर सके 15,000 रुपए महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसमें से कितने पेशेंट आए तो पर पेशेंट कॉस्ट, इसे कॉस्ट पर एक्विजिशन CPA कहते हैं। तो ये मार्केटिंग का कॉस्ट वहां पर आ गया। फिर कंसल्टिंग चार्जेस यानी आपने ये जो सारा उसको डायग्नोसिस किया, आपका जो हमें जैसे हमने बोला कि निर्णय लेने का जो आपका एबिलिटी है उसको आपने डेवलप करने के लिए जो 10-15 साल दिए रहेंगे सीखने के लिए प्रैक्टिस के, उसका कॉस्ट अपने 500 रुपीज पकड़ा। और ये 500 रुपीज और ये 200 रुपीज मार्जिन ये अलग अलग है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। मैंने वहां पर प्रॉफिट मार्जिन 200 ही पकड़ा है, ज्यादा नहीं पकड़ा। इसमें आप 500 भी पकड़ सकते हो एज पर योर एरिया। अगर ये 500 रुपीज आपने कंसल्टिंग चार्जेस पकड़े तो इसमें क्या होने वाला है कि आपको जो आपका डायग्नोसिस करने वाला, जैसे कि थेरेपिस्ट को 400 रुपीज दे रहे हो तो एज ए कंसल्टेंट आपको कम से कम 500, उसके थोड़े से ज्यादा तो मिलने चाहिए। और उसके बाद ये आपका एक ड्यूटी है जिसका आपने काम किया। फिर उसके बाद ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस आप चला रहे हो तो उसमें कुछ तो मार्जिन आपको अलग से होना चाहिए। तो आपका लेबर चार्जेस एज ए कंसल्टेंट और आपका प्रॉफिट मार्जिन ये अलग अलग है। फिर यहाँ पर 200 की जगह आप 400-500 भी कर सकते हो एज पर योर एरिया। इसको अगर आप जोड़ लेते हो तो एक पंचकर्म का निरोग बस्ती का कॉस्ट आता है 1774। तो मेरे यहाँ पर मैं आपको एक पेशेंट को चार्ज करता हूँ 8 रुपीज पर थेरेपी। अगर इसमें अगर मटेरियल कॉस्ट जैसे कि हमारे एरंडम मुलादी निरोग बस्ती का ये है, अगर हम मुस्तादी अपन वहां पर ले ले तो ये ऑलमोस्ट 2000 तक चला जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका ये सारी चीजें जैसे कि इसके साथ आप इसमें कुछ सिरोदर ऐड कर लेते हो तो फिर मैन पावर कॉस्ट भी बढ़ जाता है, मेडिसिनल कॉस्ट भी बढ़ जाता है, आपका आवर भी बढ़ जाता है वहां पर। तो सारी चीजें उसके हिसाब से बढ़ती है। तो इस तरह से बेसिक कॉस्टिंग आपको हर एक चीज का कैलकुलेट करना चाहिए। फिर इसको रिलेट कर सकते हैं आपके यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो आजू बाजू के डॉक्टर्स है वो कितना ले रहे हैं। लेकिन आपका अगर ये कॉस्ट, ये जो रियलिस्टिक कॉस्ट है ये अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर बहुत कम रेट्स लेना आपके लिए खुद के ऊपर जाती होगी, तो ये आपको नहीं करना है।
तो जिससे क्या होने वाला है कि आपको ऐसा हो सकता है कि आप वहां पर मेडिसिन तो इतने दे रहे हैं, इतना एफर्ट्स तो ले रहे हैं, लेकिन आप वहां पर पेशेंट के लिए काम जो कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको जो मनी अर्निंग होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक है जिसको आप समझ सकते हैं। फिर इसी हिसाब से जो गवर्नमेंट के कॉस्ट शीट्स आते हैं या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज के कॉस्ट शीट्स आते हैं उसके हिसाब से आपको आगे चलना पड़ता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं पंचकर्म थेरेपीज में कितना होना चाहिए। हाँ, इसमें ये भी होता है कि ये तो बस्ती हो गया, चलो अगर कुछ चीजें ऐसी होती कि जिसमें हमें हमेशा 500 ही कंसल्टेशन रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वुमन आप करवा रहे हो, अगर आपके एरिया में कोई वमन नहीं करवाता है, यू आर टेकिंग सम रिस्क, तो फिर उस रिस्क हैंडलिंग चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। यानी आपका अगर वहां पर मटेरियल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भले 5,000 हो रहा है, लेकिन आप 15,000 चार्ज कर सकते हो और यू आर गिविंग रिजल्ट्स, तो आप 15,000 चार्ज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर आपको 500 ही ऐड करें, यानी 5,000 आपका एक कैलकुलेशन हो रहा था तो आपने 5,500 में ही काम किया, नहीं। फिर वहां पर आपको अगर 15,000 लेने, वो किस चीज के है, वो आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आपने आपके एक्सपीरियंस से डेवलप किए उसके चार्जेस है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो उस तरह से यानी समझो कि एक्टर्स है, तो एक जैसे कि अमिताभ बच्चन है, या फिर अभी आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम करोड़पति में जो कौन बनेगा करोड़पति में, बाकी कोई करोड़पति बने ना बने, अमिताभ बच्चन तो करोड़पति जरूर बन जाते हैं हर एपिसोड में। इसका मतलब कि उनका चार्जेस उतना है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना काम किया है, इतने साल उन्होंने उसमें काम किया, तो उसका चार्ज वो आज ले रहे हैं। उस तरह से आपके एक्सपीरियंस का भी चार्ज आपको लेना चाहिए। तो इस तरह से हम कॉस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। यस, ओके सर। सो और क्या इसमें इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, या कोई ऐसे वैद्य हैं, आप हैं जो ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पर है अवेलेबल है सर? हाँ, आयुर्वेद इंश्योरेंस के अंडर अवेलेबल है। IRDA का जो नया सारा नोटिफिकेशन आया तो उसमें सारी कंपनियों को 38 जो मोस्ट कॉमन इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स कंपनी है, तो उन सबको नोटिफिकेशन है कि आपको आयुर्वेद के लिए इंश्योरेंस देना ही देना है। तो बेसिक जो आपका कोई भी उसमें एक प्लान आ जाता है जिसमें आयुष कवर है कि नहीं, वो पेशेंट को बोलना है कि आपको चेक करना है आपकी पॉलिसी में। यानी आयुर्वेद को इंश्योरेंस तो अलॉटेड है, लेकिन पेशेंट ने वैसी अगर पॉलिसी नहीं लिखी है, उसने नहीं ली है, तो फिर शायद उसको वो बेनिफिट्स ना मिले। तो इसके लिए जब भी आपके पास कोई आता है तो उसको बोलो कि इंश्योरेंस लेना है, तो पहले आप चेक करो कि आपकी पॉलिसी में आयुष कवर है। अगर वो है तो वो मिल सकता है। फिर उसके आगे की प्रोसीजर ऐसे होगी कि उसके नॉर्म्स उस कंपनी के अलग अलग रहेंगे। कुछ कंपनी में कैपिंग रहता है। कैपिंग इसका मतलब वो 20,000, 25,000, 50,000 इतने तक के ही लिए अमाउंट के लिए आयुर्वेद को अलॉट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होती है सम एश्योर्ड तक, यानी आपका इंश्योरेंस जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख का है, 50 लाख का है, तो उतने ट्रीटमेंट कवर होने तक आपको वो सम एश्योर्ड तक भी आपको कवर दे सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेद को मिल सकता है नहीं मिल सकता। हाँ, उसमें ऐसा है कि कई कंपनियों में ऐसा होता है कि डे केयर के लिए मिल जाता है, कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि नहीं, आपको वहां पर 24 आवर्स के लिए मिनिमम एडमिशन रहना पड़ता है, तो फिर वहां पर आपको पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। तो उसके लिए आपको IPD फैसिलिटी, इंडोर फैसिलिटी होना वहां पर जरूरी होता है। तो एज पर कंपनी कौन सी है, उसकी पॉलिसी कौन सी है, उसके नॉर्म्स क्या है, उसके हिसाब से आपको ये फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती है, कितनी मिलती है, ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली जहां पर 15 बेड का आयुर्वेदा हॉस्पिटल है वहां पर कैशलेस भी हो सकता है। जिनके यहाँ पर 5 बेड का हॉस्पिटल है वहां पर रीइंबर्समेंट जो होती है वहां पर वो हो सकता है। कुछ अगर आपके OPDs है जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जैसे ICI लोम्बार्ड है वगैरह, तो HDFC भी अभी स्टार्ट किया है, तो वहां पर आपको डे केयर की फैसिलिटी में भी वहां पर आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये मिलना पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल है। हाँ, लेकिन आपके पास उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए। और हाँ, ये भी याद रखना है कि कोई भी पेशेंट आता है उसको इंश्योरेंस मिलेगा ऐसा नहीं। वहां पर इंश्योरेंस मिलता है इसका मतलब क्या, रिस्क कवर है। तो इंश्योरेंस पैसे कंपनियां जो होती है वो हमेशा इसके लिए नहीं होती कि पैसा देने के लिए बैठी है। वो साहूकार जैसे होती है, वो देखती है कि इसको पैसा डुबा सकते हैं, यानी किसको नहीं देंगे उसके लिए पहले वो काम करती है। तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नीड फॉर एडमिशन, आपको वहां पर एडमिट होने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आपको फिर हम वहां पर MRI होना चाहिए, आपको कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आपका डायग्नोसिस प्रूवन होना चाहिए। यानी उनको अगर वहां पर रिस्क के लिए वो पैसा अगर दे रहे हैं तो उनके अगेंस्ट वो देखते हैं कि वो पेशेंट को रियली कुछ हुआ था क्या। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि बहुत पहले जब इसको इंश्योरेंस चालू हुआ था 2000 साल के 2000 के पहले, तो उसमें क्या हुआ था कि
बहुत सारे लोगों के ने वेलनेस के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेल की, उस पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख का बिल भी उन्होंने इंश्योरेंस से मिलवाया। तो जिससे क्या हो गया कि फिर इंश्योरेंस कंपनियां सावधान हुई, उन्होंने फिर आयुर्वेद के लिए इंश्योरेंस ही बंद कर दिया। ये बोलते हैं कि इसमें रिस्क ही नहीं है, कोई भी कर सकता है, तो फिर सबको देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए वैसा हो नहीं हो, इसके लिए उन्होंने बंद करवा दिया। लेकिन उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स आए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो जिससे अभी ये फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन उनके पॉलिसी में आयुष कवर होना चाहिए, नीड फॉर एडमिशन क्लियरिफाई होना चाहिए, फिर आपके यहाँ पर वो फैसिलिटी जैसे कि 5 बेड का हॉस्पिटल, 15 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर अगर पॉसिबल है तो NABH एक्रेडिटेशन होना चाहिए, IOS एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तो जिससे ये आसानी हो जाती है कि आपके यहाँ पर भी इंश्योरेंस मिल सकता है। एक आसान में इसको आपको बता देता हूँ कि आपके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मैं भी मेरे यहाँ पर करता हूँ। जैसे कि आपका क्लिनिक है, अगर आप वहां पर इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं ले पा रहे हो, तो आप क्या करो, एज ए कंसल्टेंट आपके नियर बाय कोई 15 बेड का, 25 बेड का, 50 बेड का कोई एलोपैथी हॉस्पिटल रहेगा, तो उससे अटैच हो जाओ एज ए कंसल्टेंट करके। तो फिर उनको वहां पर कुछ MOU बना लो, उनको अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ है तो आपके लोकल जो कॉर्पोरेशन है वहां पर इंक्वायरी करो कि कुछ नीडफुल अगर डॉक्यूमेंटेशन है वो करवा लो। तो जिससे क्या हो जाता है कि उनके यहाँ पर ऑलरेडी इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो फिर आपका बस वहां पर एम्पैनलमेंट या फिर आपका अटैचमेंट वहां पर हो जाता है। तो आपको बस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, आपके इंश्योरेंस वहां पर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, समझो कि एक 15 बेड का इंश्योरेंस हॉस्पिटल अगर वहां पर तैयार करना है, तो कम से कम आज की डेट में मेट्रो सिटीज में 2-5 करोड़ तो कम से कम लग जाते हैं। अगर आप जहाँ पर रहते हो उसके हिसाब से ये अमाउंट वेरी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करते हो तो फिर क्या होने वाला है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी के लिए आप पेशेंट को सेवा भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक सुविधा हो सकती है जिसमें कुछ खर्चा नहीं करना है। हाँ, लेकिन आपको एलोपैथी वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से अगर आपके साथ काम करते हैं तो उनका ऑलरेडी सिस्टम सेट है, तो उसके साथ अगर आप काम करते हो तो ये आगे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यस। ओके सर। सर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं पंचकर्म के नाम पे, स्पेशली इन टाइम्स लाइक दिस, तो एक तो पेशेंट कैसे डिफरेंशिएट करे, उसको कैसे गाइड करे, और दूसरा वैद्य अपने आप को लाइक कैसे इससे कैसे बचना चाहिए, और इसके थ्रू हम पंचकर्म को और बेटर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट होता है, क्योंकि आजकल मैल प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ती जा रही हैं स्पा सेंटर्स के नाम पे या पंचकर्म एज जनरल के नाम पे, तो इससे कैसे आगे प्रोसीड करें। यस। तो आजकल के ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा छोटा एक बात बताता हूँ कि अभी आपको पता होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं, राइट। तो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इसके लिए इन फ्रॉड करने वाले लोगों को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, वो तो कोई भी करेगा, कहीं भी करेगा। अभी ये जो कल बॉम्ब स्फोट हुआ अपने दिल्ली में, तो उसके लिए वो ना करे, इसके लिए हम ज्यादा उनको काउंसलिंग नहीं करने के लिए जा सकते। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सरकार का वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है कि लोगों को अवेयर करे कि जैसे रिजर्व बैंक से बहुत सारी ऑनलाइन फ्रॉड के लिए है, तो रिजर्व बैंक का हर एक करोड़पति का जो भी चलता है सेशन, उसमें 2-4 बार ऐड आ जाता है, एंड दिन भर में आप कुछ भी देखते रहो तो वहां पर ये रिजर्व बैंक वहां पर अच्छे से एक अवेयरनेस सेशन क्रिएट करती है कि इस तरह के फ्रॉड्स में ना रहे। अभी हमारे एरिया में तो उन्होंने बैनर्स भी लगा दिए, इस तरह के फ्रॉड होते हैं, उस तरह के फ्रॉड होते हैं, ये लोग पूछते हैं, वो लोग पूछते हैं, आपको स्कैनर भेजते हैं, यानी बहुत बड़ा अलग तरीके से वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? जो फ्रॉड्स रोकने वाली संस्था है वो कर रही है। तो अभी हमारे प्रैक्टिस में अगर ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ये जो फ्रॉड करने वाले उनको रोकना ज्यादा जरूरी है, या फिर हम लोगों ने वहां पर लोगों में अवेयरनेस करना, क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अच्छे प्रैक्टिस करने वाले, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करने वाले पंचकर्म वैद्य तैयार होना, ये पहली बात है। फिर उन्होंने सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना कि व्हाट इज एक्चुअल पंचकर्म, वो दूसरी बात है। फिर अगर ये हम अच्छी तरह से करते रहेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, वो पेशेंट को पता ही रहेगा कि हाँ ये पंचकर्म प्रॉपर तरीके से नहीं है, ये जो बता रहे ये प्रॉपर पंचकर्म है। अभी पंचकर्म में माल प्रैक्टिस में क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा हम देख लेते कि बहुत सारी जगह पर स्पास है या फिर कुछ जगह जहाँ पर मसाज सेंटर्स है, वहां पर आयुर्वेद के नाम पे कुछ काढ़ा देंगे, कुछ करेंगे, स्नेहन शोधन करेंगे। यानी लोगों को लगता है कि स्नेहन शोधन करना
है ना, उसको भी स्नेहन शोधन उसको कोई बोलता नहीं, मसाज बोलता है, मसाज टीम बोलते हैं लोग। तो वो ही पंचकर्म है ऐसा लगता है। बहुत बार हमें भी ऐसे कॉल्स आते हैं कि आपके पास मसाज टीम होता है कि, पहले तो बोलते हैं पंचकर्म होता है क्या, बोलते हैं हाँ पंचकर्म होता है, हमारा पंचकर्म का क्लिनिक है। तो बोलते हैं फिर मसाज टीम का कितना देते हैं। मैं बोला मसाज टीम इज नॉट पंचकर्म। आपको पंचकर्म करना है तो आपको क्लिनिक में आना पड़ेगा, आपकी केस हिस्ट्री ली जाएगी, आपका डायग्नोसिस किया जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा पंचकर्म आपके लिए एडवाइजेबल है वो भी जरूरी है तो ही हम करेंगे। तो पेशेंट जो अगर वो जेन्युइन रहेगा तो फिर वो बोलता है ठीक है ऐसा होता है क्या, तो फिर मैं क्लिनिक में जरूर विजिट करता हूँ। अगर जिसको मसाज टीम ही करवानी है तो वो बोलता है ठीक है फिर मैं दूसरी जगह देख लेता हूँ। यानी वो हमारा क्लाइंट ही नहीं था, वो हमारा पेशेंट ही नहीं था। यानी हमें पहले हमेशा याद रखना है कि हमें प्रॉपर पंचकर्म के बारे में ही बात करनी है। अगर हमें वहां पर इस तरह से बात करनी है कि आपको रिलैक्सेशन के लिए भी पंचकर्म वहां पर करना है, तो जो चीजों का कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, जो सबके लिए एडवाइजेबल है, जो स्वस्थ व्रत में बताइए, उसे हम आयुर्वेदिक रिलैक्सेशन थेरेपी करके हमारे प्रैक्टिस में भी इंक्लूड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से लोगों को बता सकते हैं। जैसे कि अभ्यंग महोत्सव है नस्य के लिए, अगर वहां पर जैसे कि प्रतिमर्श नस्य जो कोई भी कर सकता है थोड़ी बहुत जानकारी होने के लिए, तो फिर उसके लिए हम उसका महोत्सव कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को एजुकेट करेंगे तो वहां पर मेल प्रैक्टिसेस कम होने वाली है। एक मेल प्रैक्टिस इस तरह से होती है कि मैंने 7 दिन में सारे पंचकर्म करवा लिए। एक दिन में वमन करवाया, दूसरे दिन विरेचन करवाया, तीसरे दिन बस्ती करवाई, चौथे दिन नस्य करवाया, एक दिन शिरोधारा हो गई, फिर हो गया मेरा पंचकर्म। ऐसा 8 दिन का मैंने एक जगह पर गया था, वहां पर मैंने पंचकर्म कर लिया। तो ये पंचकर्म है क्या? तो ये पंचकर्म नहीं है। एक दिन आप कफ को बोल रहे चलो ऊपर, दूसरे दिन विरेचन हो रहा है तो उसमें बोल रहे नहीं चलो पित्त को चलो नीचे, फिर तीसरे दिन बोल रहे नस्य करेंगे तो उसमें क्या होने वाला है, उसको आप शिरोमार्ग से बाहर निकाल रहे, फिर बोल रहे सब हो गया चलो अभी शांत हो जाओ शिरोधारा करेंगे। और इसके बीच में 2-3 सेशन, सुबह एक शाम में आप मसाज का सेशन ले लेते हैं और उसमें पेशेंट घूम रहा है ठंडी हवा में, कहीं पर वो कोई वाटरफॉल में जा रहा है, क्योंकि नियर बाय कुछ नेचुरल सीनरीज वगैरह होती है वहां पर भी वो घूमने का ट्रैवलिंग का काम कर रहा है। तो फिर ये जो है वो पंचकर्म नहीं है। तो ये हमें लोगों को अवेयर करवाना है कि पंचकर्म जहां पर होता है ये शोधन प्रक्रिया होती है, वो 5 प्रकार की होती है, इसके लिए इसको पंचकर्म कहते हैं। शोधन प्रक्रिया, उसके लिए कुछ नियम होते हैं कि शरीर के साथ ये जो होता है ये प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एसओपी से, प्रॉपर गाइडेंस लिए कि डॉक्टर के अंडर ही करना होता है। ये कहीं पर भी जाके आप मत करो, अगर कर रहे हैं तो यूर इन रिस्क, ये आपको उनको पहले बता देना है। तो फिर वो थोड़ा डर भी जाए, अच्छा है डरना, क्योंकि चोरी करना गलत बात है, ये इसका डर अगर नहीं होता है तो कोई भी उठ के चोरी करने जाएगा। तो ये थोड़ा सीरियस बात होनी है, इसके लिए लोगों को पता होना चाहिए कि पंचकर्म इज सीरियस मैटर। जैसे कि ऑपरेशन, हाँ मैंने कर लिया ना, मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन था घर में ही कर लिया मैंने, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। उसको आप अच्छा सा हॉस्पिटल देखते हैं, डॉक्टर की डिग्री देखते हैं, प्रॉपर सेटअप देखते हैं, उसके बाद भी जाते हैं तो डॉक्टर ने कौन से जगह से डिग्री ली है, कनाडा से ली है, अमेरिका से ली है, वो भी पढ़ते हैं जाके वहां पर। फिर उसके बाद उसको 10 लोगों को पूछते हैं कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता है कि नहीं, इसके रिव्यूज कैसे, फिर आप वहां पर अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करने का डिसाइड करते हैं। उसी तरह से अगर पंचकर्म करना है तो आपको वैद्य में, आपको हॉस्पिटल कौन सा चूज करना चाहिए, आपको वैद्य कौन सा चूज करना चाहिए, पंचकर्म खुद से डिसाइड नहीं करना है, वो डॉक्टर बताएगा। ये सब चीजें आपको वहां पर पेशेंट को एजुकेट करने का काम आपको करना है। पेशेंट खुद से तो कुछ नहीं करने वाला है, वो तो लेमैन है। तो इसके लिए माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है तो हमें वहां पर अपना प्रमोशन करना ज्यादा जरूरी है। यस। सर हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ी हैं, डॉक्टर ज्योति जी, वो छत्तीसगढ़ से हैं। कह रही है आप पुणे में प्रैक्टिस करते हैं सर, उनके लिए पुणे आना तो पॉसिबल नहीं है, अगर वो पंचकर्म सीखना चाहती हैं तो क्या और कोई तरीका है जिससे वो पंचकर्म इजीली सीख सकती हैं घर पे या अपने लोकेशन में ही? हाँ जरूर सीख सकते हैं हम। जैसे कि पंचकर्म ट्रेनिंग का कोर्स अभी कैसा है कि फिजिकल बाउंड्रीज तो आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से, या फिर ये जो हमारी फिजिक्स की है या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है, तो उसकी वजह से आज की डेट में रही नहीं है। तो आप जहाँ पर हैं वहां से, यानी मेरे पास जो कोई पंचकर्म है, अभी आपको मैं स्लाइड भी शेयर कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ पर आयरलैंड से एक यानी वहां पर वो एक्चुअली वो आयुर्वेद सीखने के लिए, ही वॉज लेमैन, उसको मैंने हम पंचकर्म का बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, उसको पंचकर्म नहीं सिखाया। लेकिन आयरलैंड से भी एक मेरे पास आया था, फिर उसके बाद और कई कंट्रीज से भी आते हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया से पेशेंट भी हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर है वहां से पंचकर्म सीखने के लिए यहीं पर आना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, स्नेहन करना ये आप आपकी जगह पर सीख सकते हो, स्वेदन करना जो कैसे करना मैंने बता दिया तो आप कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है।
नस्य के लिए औषधि नाक में डालना, उसमें बहुत बड़ा स्किल है, जैसे ऑपरेशन करने से ऐसा कोई नहीं है। या फिर ये जो प्रोसीजर्स है उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार देखकर भी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट है कि कब करना, कब नहीं करना है, इसमें कितना डालना है और कब रुकना है। ये सारी चीजों का जो वैद्य का नॉलेज है ना, वो आपको होना चाहिए। यानी कोई भी कंसल्टेंट जो एलोपैथी में प्रैक्टिस करता है वो इस तरह से नहीं करता है कि जाके वो खुद ही ड्रिप लगाता है, खुद ही पेशेंट को इंजेक्टेबल देता है, वो बस लिख के देता है। तो उसमें कहा कौन सा मेडिसिन देना है, कितने डोज में देना है, वो जैसे उसका दिमाग रहता है, उस तरह से हमारे पंचकर्मा प्रैक्टिशनर का ये दिमाग होना चाहिए कि मुझे अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट करनी है तो कब कौन से ट्रीटमेंट से, स्नेहपान कितने दिन के लिए करना है, संसर्जन क्रम कितने दिन के लिए लें, अखंडपान कितना देना है, बस्ती में सेंधव कितना डालना है। जैसे अभी कल मेरे पास एक अंकल है जिनका 76 ईयर के है, उनको 7 साल से मुझे बोल रहे कि मेरा पेट साफ प्रॉपर तरीके से नहीं होता, मैं 2-3 टैबलेट से पेट सफा के वगैरह लेता हूँ, तो उससे पहले होता था, अभी उससे भी नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ। और उनका भी 4-5 दिन तो स्वेदन बस्ती चल रहा था, तो उसमें पहले 4-5 दिन तो ठीक हुआ, फिर बोले नहीं हो रहा है अभी, तो उसमें मैंने सेंधव की मात्रा बढ़ाने के लिए कही, फिर बोले हाँ अभी अच्छे से हो रहा है। तो इस तरह से वो जो है कि मात्रा कितनी डालनी है, वो सारी चीजों का ज्ञान आपको होने के लिए वो तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। जैसे फिर ऑनलाइन कोर्स होते हैं, तो जैसे हमारा भी पंचकर्मा का ऑनलाइन कोर्स आ रहा है, तो उसमें भी आप ये सारी चीजें जरूर सीख सकते हो। उसके लिए फिजिकली यहाँ पर आना अगर पॉसिबल है दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं पॉसिबल है तो ऐसा कुछ नहीं कि हम वहां पर सीख ही नहीं सकते, आप ऑनलाइन कोर्स में भी सीख सकते हैं, जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस भी दिखा सकते हैं। जैसे कि समझो कि अभी कटी बस्ती करना है, तो कटी बस्ती के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, फिर उसके बाद उसका आटा किस तरह से गूंदना है, फिर कटी बस्ती लगानी कैसी है, उसके बाद तेल किस तरह से गर्म करना है, उसमें किस तरह से डालना है, कितनी देर के लिए डालना है। अगर कटी बस्ती करते हैं तो फिर जो रीजन होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए, वो उसमें हम डायग्नोसिस करते वक्त क्या सोचेंगे कि L5S1 में अगर गैप है पेशेंट को, या फिर वहां पर उसका डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, तो फिर उसका लोकेशन किस तरह से सरफेस मार्किंग फाइंड करे, फिर उसके बाद आफ्टर दैट आपको नाड़ी स्वेद करना है। तो ये अगर आपने वीडियो पे देख लिया तो फिर अभी वो तो आसान हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, तो ऑनलाइन कोर्स नहीं, आप ये सब सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो अभी आप सब डॉक्टर से, ऐसा नहीं को आप BMS अभी सीख रहे हैं, तो अभी आप सब डॉक्टर से, तो सुई लगाना जो है वो उतना आप आ सकता है आपको, वो कोई मुझे सिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन कहाँ लगानी है ये जैसे सीखना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। वो जैसे कि कंपाउंडर इंजेक्शन देना जानता है, लेकिन कौन सा देना है कब देना है वो जैसे नहीं जानता है ना, उस तरह से आपको कंपाउंडर की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको वैद्य की तरह प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए स्किल सीखना बहुत आसान है, लेकिन कब करना है वो सीखने के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोर्स के डिटेल्स आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे। टू ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप लोग चैट बॉक्स जरूर देखें। सर फ्रॉम माय एंड लास्ट क्वेश्चन, देन हम लोग वैद्यों के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहेंगे। सर क्या पंचकर्म प्रैक्टिस करने के लिए MD इन पंचकर्म होना कंपलसरी है, या सिर्फ प्लेन BAMS के बाद भी पंचकर्म प्रैक्टिस की जा सकती है, या फिर कोई और MD स्वस्थ वृत्त है या MD रोग निदान है तो भी वो पंचकर्म की प्रैक्टिस कर सकता है? सर आपका BMS हुआ है, इसका मतलब आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड हो, ये आपको बाय गवर्नमेंट आपको ये मिल गया है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी इसके बाद आगे का नॉलेज आप कितना एडवांस में ले ला सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसका मतलब क्या, दक्ष तीर्थस्थ शास्त्र दुष्टकर्मा शुचिर्भिषक, इसमें से आपने बहुत सारे कर्म देखे हैं, तो MD करते इसका मतलब क्या, उस चीज में हम थोड़ा सा और ज्यादा काम करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस में अगर उसी तरह से ज्यादा टाइम देकर पंचकर्मा सीखने के लिए कोई कोर्स किया है, पंचकर्मा को खुद प्रैक्टिस करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, किसी कैंप में जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, वही तो कर रहे हो। उसके लिए एक डिग्री होने की कोई जरूरत नहीं है, MD पंचकर्मा हो जाते हैं जैसे मैंने किया है तो अच्छा है, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस तब भी कर सकते हो। अगर आपको MD के लिए जो इतना खर्चा या फिर उसका टाइम ये सब मैनेज नहीं हो रहा, कुछ लेडी वैद्य रहते हैं जिनका भी शादी जल्दी हो जाती है, तो फिर बच्चे रहते हैं, तो फिर वो सब कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आप ऑनलाइन कोर्स करो, फिर उसके बाद कभी लगता है तो कम्युनिटी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे आंसर्स। तो जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर BMS यू कैन प्रैक्टिस। और अगर स्वस्थ वृत्त में है वगैरह तो वो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसका आप आपके प्रैक्टिस को एनहांस करने में थोड़ा सा किस तरह से हेल्प हो सकता है उसका भी आप विचार कर सकते हो। लेकिन MD पंचकर्मा होना, हाँ ये चीजें है कि कहीं अगर आप जाके अटक जाते हो तो जिसमें थोड़ा सा डीपर अभ्यास किया है तो उससे हम थोड़ी सी सलाह ले सकते हो।
जैसे कि हमारे यहाँ पर भी कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है किसी पेशेंट के लिए, तो कोई हमारे सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनसे हम सलाह मशवरा कर सकते हैं ना। तो आयुर्वेद में ही इटसेल्फ बताया कि संध्याय संभाषा बताई है, तद्विद्य संभाषा बताई है, तो ये किस लिए बताई है? अगर खुद एक वैद्य एमडी पंचकर्मा हो गया तो वो किसी से बात करेगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। वैद्य समूह निस्संशय कराना, वो किस लिए होता है? इसी के लिए तो होता है। तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you first of all, sir. इतना insightful session के लिए. Now we'll move to the last part of the session. जिन्हें भी कोई भी question हो, I would request everyone कि आप one by one question put कर सकते हैं, आप hand raise कर सकते हैं, and then we can unmute. So firstly, I would request Vaidya Sapna ji to please unmute the mic. Sapna Singh ji can please unmute and proceed with the question. Anyone willing to ask anything can just raise their hands and Sapna ji, are you there? Akansha Mishra ji can please unmute. Hello. 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 Myself Sapna, ma'am. Yes, Hello. ma'am. You can please proceed with the question. जी मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी एक पेशेंट है तो Yes. अर्धाव भेदक की है सर, और उसको ईयर में भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसके लिए उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था। तो मैंने उसको सर शिरोधारा और नस्य और पत्र पोटली स्वेद शुरू किया। तो अभी वो जैसे ही उसका शिरोधारा हुआ, नेक्स्ट डे शी इज कंप्लेनिंग मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, मुझे बहुत वीकनेस है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, मैं तो पहले से भी ज्यादा मतलब हालत मेरी खराब हो रही है। तो मैंने उनको बोला था कि अच्छे से कवर करके जाना। तो मुझे लग रहा है बीपी वगैरह सब उनका नॉर्मल है सर, वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल है। तो ऐसे क्यों हो रहा है सर, मुझे नहीं समझ आ रहा है। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा था कि उनको अर्धाव भेदक है, लेकिन वो जो शिरशूल उनका है वो वातज है, पित्तज है, कफज है, उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं है। तो वो किस तरह से था? सर मुझे वातज लगा, हाँ जो उन्होंने मुझे बताया उसके बेस पे वो मुझे वातज लगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि नस्य और शिरोधारा हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, उससे के पहले पेशेंट का अनुलोमन करवाना बहुत जरूरी होता है, दीपन पाचन अनुलोम। तो वो करवाना एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है, अगर वो वातज शिरशूल है तो उसमें उनको रिजल्ट आने ही चाहिए। अगर नहीं है, वहां पर कोई अनुबंध रह सकता है, जैसे कि कफ का अनुबंध रहा होगा, तो जिससे क्या हो जाता है कि शिरोधारा करने के बाद बहुत सारे पेशेंट को सिर भारी होना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। और जैसे कि आपके पेशेंट्स को आपको ये बताना भी है कि पहले 1-2 दिन के लिए आपको ऐसा लग भी सकता है, ये आपको प्री काउंसलिंग में उनको बता देना है। और उसके बाद शिरोधारा करने के पहले और बाद में उनको, या फिर नस्य करने के पहले और बाद में 1 से 1.5 घंटे उनको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, सिर से स्नान नहीं करना है। ये सारी चीजें उनको ऑलरेडी बतानी है। आते जाते उनको पूरी तरह से पैक करके जाना आना है, पूरी बॉडी को ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, और उनका पेट पूरी तरह से साफ होता है कि नहीं होता है वो देखना है। या फिर रात में वो सोते समय कुछ दूध पीती है, ठंडा पानी पीती है, सुबह उठते ही उषक पान करती है, ऐसे अगर कुछ चीज रही होगी जिसकी वजह से कफ दोष जो है या फिर वात दोष है ये टुवर्ड्स सिर की तरफ अगर जाते हैं, तो फिर वहां पर उनको दर्द होना, भारीपन आना, ये सारी चीजें होती है। यानी सिंपल आप समझ सकते हैं, वहां पर उनको भारीपन लग रहा है, इसका मतलब वहां पर कफ का आवरण आ चुका है। जी कोई भी चीज ऐसी रही होगी जिसको आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना है कि जो उन्होंने सर मैंने उनको उपशय अनुपशय सब बताया और उनको क्या नहीं करना है सब बताया कि उनको ठंडी हवा में एकदम से नहीं जाना है, थेरेपी होने के बाद थोड़ा सा खुद को कवर करके वहीं रुके थोड़ी देर फिर जाएं। पर सर डिटेल्स पेशेंट बिल्कुल ठीक दे रहा है, जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, उसको भूख भी सही लग रही है, मतलब मुझे आम का भी कोई लक्षण उसमें नहीं मिला। तो इसलिए सर मैं मेकआउट नहीं कर पाई कि कहाँ मतलब मुझसे चूक हो रही है। कितनी देर के लिए आपने शिरोधारा की थी? सर 45 मिनट्स। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा इसमें आप कर सकते हो कि आप शिरोधारा कब भी करो ना तो डायरेक्टली 45 मिनट्स के लिए मत करो, स्टार्ट विद 20 मिनट्स। पेशेंट को पहले ये सिर भारी होना मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में होता है, तो कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो उसके लिए आप स्टार्ट विद 20 मिनट्स, फिर 25,
फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, देन अगेन टेपर ऑफ। तो जैसे हम ओके मेडिसिन का करते हैं ना, तो उस तरह से आप इसको करो। फिर 20 मिनट करने के बाद उसको कोई तकलीफ नहीं हुई और उसके साथ साथ आपने नस्य भी किया है, उसको कोई तकलीफ, देन यू कैन गो फॉर 25 मिनट। जैसे हम स्नेहपान में करते हैं ना कि 30 जी। है 60 है, उसी तरह से बढ़ाते जाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, फिर बंद करते वक्त टोटली ऐसा नहीं करना कि एकदम से बंद करना है। ओके सर। और सर अभी मैं क्या करूं फिर? उसको शिरोधारा बंद आज तो नहीं कराया उसने, फिर नस्य नस्य हुआ है सिर्फ उसका और पत्र पोटली, तो अभी उसको बंद करूं थेरेपी सर या फिर कंटिन्यू रखूं, कैसे करूं? उनको अभी आज के लक्षण दिखाई दे रहे बोल रहे हैं आप? सर वही उसको हैवीनेस इन हेड एंड वीकनेस बहुत हो रही है सर, उसको बोल रही है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है and हाँ, चला उनको तो फिर थोड़ा उनको आप क्या कर सकते हो, उनको स्नेहन स्वेदन भी कर सकते हैं। तो स्वेदन यानी जैसे हम सर्दी होने के बाद स्टीम लेते हैं, उस सर तरह मैंने की। दिया, स्टीम दिया सर मैंने आज ना उसको। और उसको थोड़ा सा उनको धूमपान भी कर सकते हो। जैसे कि जी। वमन करने के बाद क्या होता है कि पेशेंट को ये सारे दोष ऊपर आ जाते हैं और फिर नासा और बाकी स्रोतों में अटके हुए रहते हैं। तो उसके बाद जी। का संज्ञा स्थापन करने के लिए और वो जो बचे हुए स्रोतोरोध करने वाले दोष है उनका शोधन करने के लिए वहां पर धूमपान किया जाता है। तो उसी तरह से आप धूमपान भी कर सकते हैं, तो उनको फ्रेशनेस आ जाए। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। Next, I would request Akansha Mishra ji to please unmute. So good evening sir and ma'am. सर मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे ये क्वेश्चन है कि मेरी मदर हैं तो वो डायबिटिक हैं सिंस 10 इयर्स और उनको अभी गाउट मतलब गाउट भी सस्पेक्ट किया जा रहा है और कैटरेक्ट की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तीनों चीज का। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे पंचकर्मा कराना है उनका, तो मैं क्या करा सकती हूँ? उनका HbA1c कितना है? HbA1c से 6.5 है। 6.5 है। गाउट की तकलीफ है तो उनका यूरिक एसिड आपने चेक किया है? सर चेक तो होता है रेगुलरली, मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, तो पंचकर्म कराना है तो आप कर सकते हैं। 6.5 HbA1c है तो इसका मतलब क्या बहुत ज्यादा डायबिटिक नहीं है वो। अभी Yes, sir. डायबिटीज ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर हम 1.5 घंटा अलग से बात कर सकते हैं कि डायबिटीज और Yes, हमारा sir. प्रमेह दोनों एक नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें हम सोचनी पड़ती है। तो लेकिन आप पंचकर्म करा सकते हो तो क्या कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मली कोई पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं पंचकर्म के लिए, उसका बेसिक इन्वेस्टिगेशन, फिर उसको विलिंगनेस, उनको सारा काउंसलिंग करना, अगर वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, डायबिटीज है तो उसमें हमें क्या करना रहता है, उनको थोड़ा सा थकान जल्दी आ जाती है, उनको कोई इस तरह से अगर उनका मेडिसिन चल रहा है उसके लिए वो 6.5 है या फिर कंट्रोल में है इस तरह से, या फिर इंसुलिन चल रहा है उसके बाद भी 6.5 है, वो अलग बात है। नहीं नहीं, इंसुलिन नहीं चल रहा सर, नॉर्मल, मतलब उनका डायबिटीज नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मल ही रहता है तो ठीक है, आप पंचकर्म तो करा सकते हैं, लेकिन Yes, सबसे sir. पहले तो डायग्नोसिस करो आप उनका कि उनको कौन से दोष की उनके शरीर में शुद्धि करानी जरूरी है। अभी उनके शरीर में डायबिटीज है और वातरक्त है, इसका मतलब क्या क्लेद है जो उनके रस में भी है और रक्त में भी है। सर रस में पूरी है, बॉडी में इचिंग भी हो रही है उनको सिंस 4 to 6 मंथ। यस, वो जो क्लेद है ना उनके शरीर में रस में भी है और रक्त में भी है। रक्त में है इसके लिए उनको इचिंग हो रही है और वातरक्त की तकलीफ हो रही है, और Yes, उसी रस में है इसके लिए जो आम जो कहेंगे वो रसगत है, इसके लिए क्या हो रहा है शरीर में। जैसे डाइजेशन इश्यूज भी हैं। हाँ, तो उनको पहले दीपन पाचन आप देखे, उनका एज कितना है? एज ऑफ 50 है। 50 है। अगर वो उनका बाकी सब ओवरऑल ठीक है तो उनका वमन भी करा सकते हैं, विरेचन भी करा सकते हैं, बस्ती भी करा सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो। 1 महीने में करो, दूसरे महीने में दूसरा करो, तीसरे महीने में तीसरा, लेकिन पेशेंट का सहत्व सहन सब देख के फिर वो करना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आपने जैसे कि वमन विरेचन बस्ती का प्रोसीजर सीखा रहेगा तो उसके हिसाब से वो सारी चीजें आपको करनी है, कर सकते हो, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं स्टूडेंट हूँ अभी। तो किसी आपके जानकार वैद्य के फिर आप थोड़ा सा कंसल्टेशन ले सकते हो, आपके आजू बाजू में जो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका आप कंसल्टेशन लो और फिर वहां पर करो। आप खुद से मत करो, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर Yes, sir. कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। Yes, sir. यस, Okay, thank you, sir. Kirti ji can please unmute. Kirti ji can please unmute. Would request Shraddha ji to please unmute the mic. Sir, good evening. गुड इवनिंग। यस,
सर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट कि अगर हम स्वस्थ शास्त्र रक्षणम के लिए स्नेह पंचकर्म कराना चाह रहे हैं तो स्नेहन के लिए हमें किस तरह का स्नेह यूज करना चाहिए, मतलब कौन कौन से स्नेह हम यूज कर सकते हैं? अगर आप स्वस्थ व्रत के लिए कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम स्नेहपान कराते, तो वमन करते हैं, विरेचन करते, तो उसके लिए हम स्नेहपान कराते हैं। तो विरेचन के लिए आप पंचतिक्त घृत जो होता है, तिक्त घृत जिसे हम कहते हैं, तो उसका आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, या फिर जैसे अच्छा पान स्नेह कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ घी अगर यूज करते तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मेडिकेटेड घी पहले यूज करना चाहिए। अगर हम विरेचन के साथ कर रहे हैं तो फिर पंचतिक्त के लिए जा सकते हैं, वमन में भी वही यूज कर सकते हैं, यानी 90% केसेस में वही यूज होता है। लेकिन अगर कोई, जैसे आप कोई मोटिव रखते हैं कि जहाँ पर कोई उनको पहले से बीमारी है या कुछ है, तो उसके हिसाब से नहीं आप सर, हम स्वस्थ शास्त्र रक्षणम के लिए कर रहे हैं, तो नॉर्मल मैं ये जानना चाह रही थी कि इसमें हम प्लेन घृत देंगे, इधर मेडिकेटेड देना चाहिए, मेडिकेटेड इन द सेंस ऑफ मूर्छित स्नेह देना चाहिए क्या? इज इट कंपल्सरी और नॉट? मूर्छित स्नेह करना यानी मूर्छना किस लिए होता है? जो घृत या कोई स्नेह होता है, उसका जो गंध आम दोष रहता है उसको दूर करने के लिए वहां पर वो मूर्छित स्नेह दिया जाता है। तो आपको मूर्छित स्नेह देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए सिंपली पंचतिक्त घृत यूज करते हैं तो वहां पर मूर्छना भी हो जाती है, आम दोष भी चला जाता है इसका। तो एक बार आप उसमें, यानी इसमें अगर एलोपैथी के हिसाब से आप या फिर मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहें हम अगर देखते हैं तो बहुत बार घी कितने दिन से पड़ा हुआ है वो नहीं देखते हुए उसके एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर ऑक्सीडेंट्स तैयार हो जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए भी उसको उबालते हैं तो फिर वो कम हो जाते हैं। तो इसके लिए उसको सिद्ध देते हैं तो ज्यादा अच्छा है, उसका अजीर्ण नहीं होता है। तो इसके लिए आप प्रेफरेबल है कि आप वहां पर पंचतिक्त घृत दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, थैंक यू Yes. सर। इसमें हम स्नेहन स्वेदन भी कवर करेंगे प्रॉपरली? हाँ करेंगे, क्योंकि हमें स्नेहन स्वेदन करना वो किस लिए पहले वो समझना है। स्नेहन स्वेदन दोषों को पूर्ण में लाने के लिए है। आप वमन विरेचन करा ले तो आपका पहले मोटिव वो है कि उनको बाहर निकालना है। अगर वो वहां पर आएंगे ही नहीं तो फिर आपका प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन दोषों के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी हाँ, तो लेकिन कब करवाना है उसके लिए भी सोचना पड़ता है पहले। दोष गति यानी शाखा गति, कोष्ठ गति, बिल्कुल सर जी। रिलेशन टू मॉडर्न साइंस क्या होता है वो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आप वहां पर वो सारी चीजें कर सकते हैं कि स्नेहन स्वेदन ड्यूरिंग स्नेहपान करवाना है तो कब करवाना है, स्नेह जीर्ण होने के बाद करवाना है कि बीच में करवाना है कि पहले करवाना है, उसके लिए भी उसके पीछे की जो साइंस है आपको पता होनी चाहिए। जी सर। सर स्नेहन जो कर रहे हैं हम, पान कर रहे हैं, तो क्या उसको डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं या पूरी मात्रा एक साथ ही देनी है मॉर्निंग आवर में? पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के सत्व और पेशेंट का अग्नि इसके हिसाब से। लेकिन अगर आप डिवाइडेड कर सकते हैं ना, कुछ ये रेयर केसेस में करना चाहिए। आप एक्चुअली अच्छे पान करते हैं तो पूरी मात्रा देनी चाहिए, उसमें भी हीन मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा, फिर शमन स्नेह, शोधन स्नेह, ब्रूहण स्नेह अलग अलग कब देते हैं उसके हिसाब से उसका काम बदल जाता है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये थोड़ा एडजस्टमेंट है, उसे हम कहेंगे विचारणा। तो विचारणा स्नेह कब देना है वो जैसे कि हम खाने में मिक्स करके भी दे सकते हो या फिर डिवाइड करके भी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। लेकिन आइडियल है कि रात का भोजन पचने के बाद और आगे की भूख लगने से पहले आपको बीच में शोधन स्नेह देना होता है। तो उस टाइम में अगर देते तो दैट इज आइडियल। जी जी। कई एक्सपर्ट्स प्रेफर करते हैं ना कि अगर पेशेंट एक साथ मात्रा नहीं ले पा रहा है तो हम उसे डिवाइड डोज में भी दे सकते हैं। लाइक एक बार इसने सुबह दे दिया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से घी दे दिया, वो डाइजेस्ट होने के बाद फिर से जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो देते हैं लाइक 30 ml देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो 100 से ऊपर चला गया तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये पीना, जैसे कि पैलेटेबल भी उतना नहीं होता टेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग। तो क्या हम ऐसे दे सकते हैं उसको डिवाइडेड डोज में? डिवाइडेड डोज में देते तो क्या होता है कि आपको फिर उसके अग्नि का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहला जीर्ण हुआ है, इसका निर्णय कौन करेगा, पेशेंट करेगा कि आप करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वहां पर पेशेंट का निर्णय अजीर्ण होने का आप कर रहे हो तो दैट इज ओके। अगर पेशेंट खुद से कह रहे हैं हाँ मुझे भूख लगी है, तो पेशेंट को भूख दो टाइप की लगती है, एक घड़ी में लगती है, एक पेट में लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को 2 बज गए तो वह फिर वो बोलता है मुझे भूख लग गई, एक्चुअली उसको नहीं लगी होती। मेरे पास यहाँ पर जब भी स्नेहपान करता हूँ मैं पेशेंट को, तो उसको बोलता हूँ कि जब आप स्नेहपान करते हो तो ठीक है आप मुझे मैसेज डाल दो, क्योंकि 6 बजे 7 बजे वो करेंगे, टाइम तो फोन करने की नहीं बोलते हैं। लेकिन भूख लगती है मैं उनको बोलता हूँ
कि आप क्या करो कि जब भी आपको भूख लगेगी तब मुझे कॉल करना। फिर उसके बाद मैं उनको क्वेश्चंस पूछता हूँ कुछ 2-3, फिर उसके बाद उनको कहता हूँ हाँ ठीक है आपको भूख लगी अच्छे से तो आप खाना खा सकते हो, या फिर क्या खा रहे हो वो भी पूछता हूँ। नहीं तो बहुत बार ये पेशेंट इसमें क्या करते थे कि 2 बज गए, मेरा हर रोज का टाइम खाने का 2 ही बजे थे, 30 ml लिया तो भी 2 बजे ले, 60 ml लिया तो भी 2 बजे ले, और 120 ml लिया तो भी 2 ही बजे भूख लग रही है। तो इसके में क्या हो जाता है कि अग्नि का जो होता है वहां पर अजीर्ण होने के चांसेस रहते हैं। फिर अधस्ता स्नेह दर्शन वो गलत तरीके से हो जाता है, उसको विरेचन होने लगता है। विरेचन इसका मतलब अजीर्ण वाला, तो फिर लगता है वो घी बाहर आ रहा है तो हमारा स्नेहपान पूर्ण हो गया। इस तरह से भी हमारी गलतफहमी हो जाती है। तो आइडियली है कि पेशेंट को जो हमने कहा है कि शोधन स्नेह देने के जो तरीके उसी में दे। अगर बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि हम अगर पेशेंट का अग्नि प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर पाते, उसका पाचन जो स्नेह का होता है प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर पाते, तो फिर डिवाइडेड डोज में आप जरूर जाओ। लेकिन क्या होगा कि आप 60 ml दोगे, समझो सुबह 120 ml का डोज देना है तो 60 ml को पचने में 2 बज जाएंगे। फिर उसके बाद आप तुरंत स्नेहपान दोगे तो फिर वो पेशेंट रात में 12 बजे तक उसका स्नेहपान होगा, फिर वो खाएगा कब? तो इसके लिए आपको डिवाइडेड डोज में देना है, उसको आपको विचारणा स्नेह देना है, ये याद रखना है। फिर इसमें वो धीरे धीरे स्नेहपान होगा और आपको उनको प्रॉपर अति मात्रा में या फिर जो बृहत मात्रा होती है प्रवर मात्रा उसमें शोधन नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन आप स्वस्थ वृत्त कर रहे हो तो ठीक है, चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। I guess it is 9:30, sir. Should we take the last question or we should end here, sir? Whatever you suggest. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है अगर लोग पूछना चाहते तो ले सकते हैं। Okay. Last question. I would request Asmiya Ayurved ji to please unmute. हेलो यस सर। सर, मेरे पास एक 18 ईयर की फीमेल पेशेंट आई है आज। बच्चे उसको HbA1c जो है 12.9 है सर उसका। ओके। तो उसमें क्या किस तरीके से कर सकते हैं सर इसको? ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है? सर ये अभी न्यूली डायग्नोज्ड ही है ये पेशेंट ना। टाइप 1 नहीं कहेंगे सर इसको क्योंकि इसका तो अभी हुआ है डायबिटीज। हाँ, तो उसका ओबेज है कि लीन है, कैसी है? ओबेज है सर। ओबेज है। कितना है वेट उसका अप्रोक्सीमेटली? उसका 120 है सर, हाइट 5'7" है, 120 वेट है उसका। हाँ, तो फिर ये टाइप 2 ही रहा होगा मोस्टली। उसका जैसे हिस्ट्री लिया होगा तो उसमें आपने देखा उसका खान पान किस तरह से वगैरह? सर टोटली जंक फूड पे ही डिपेंड है वो बच्ची जो है। तो इसमें आपको सर पंचकर्म के ज्यादा आपको उनको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचकर्म करने के लिए जाओगे और उनका खान पान ठीक तरह से नहीं रहेगा ना तो पंचकर्म में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। क्योंकि ये सारे पेशेंट होते ना उनको उनका जो कह सकते हैं कि जैसे कि हमने आयुर्वेद में बोलता है कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग, जो मिथ्या योग, हीन योग, अति योग होते हैं, वो सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि वहां पर हमारी बुद्धि प्रॉपर तरीके से नहीं करती, प्रज्ञापराध वहां पर होता है। तो ये सारे पेशेंट जो जंक फूड खाने वाले, लेट सोने वाले, लेट उठने वाले, कुछ भी खाने वाले, ये सारे उनमें सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है प्रज्ञापराध। उनका प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं हो पाता है तो फिर हम पंचकर्म के लिए भी भले जाए तो उसमें वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर आगे क्या हो जाता है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। या फिर आप उसको माइल्ड पंचकर्म कर सकते हो, उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या करो, उसका तो अच्छे से दीपन पाचन करो, काउंसलिंग करके उसके पहले उसका एक्सरसाइज चालू करवा दो। क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिर्फ पंचकर्म करोगे तो उतने दिन के लिए उसको थोड़ा सा हल्का पेश होगा, 10-5 किलो वजन भी कम हो जाएगा, लेकिन वो 6 महीने के बाद वो उतना और फिर से एक बार पुट ऑन कर देगी। अगर पेशेंट की अगर हित के हिसाब से देखा जाए तो उसको पहले दीपन पाचन करना, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज, खाने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग, ये पहले एडजस्ट करवाना। फिर उसके बाद उसको उद्वर्तन आप करने के लिए बोल सकते हो। उद्वर्तन से क्या होता है, मेदसा प्रविलापनम बोला है और कफहरम, तो उसका उसमें फायदा होने वाला है। फिर मेडिकेशन जो आप वहां पर देंगे, फिर उसको वमन की, विरेचन की, बस्ती की नितांत आवश्यकता है वो कर सकते हो, लेकिन एज पर पेशेंट कन्वीनियंस है। क्योंकि जैसे 120 kg 18 ईयर्स है तो वो मुझे नहीं लगता कि आपका वो घी पिएगी और वो सब करने के लिए रेडी होगी। तो पहले सबसे पहले तो आपको उसको काउंसलिंग ही करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। हाँ, फिर उसको अगर चलो 5-10 किलो विथ मेडिसिन और छोटे बाहर एक्सटर्नल थेरेपी जैसे उद्वर्तन से कम हो गया तो फिर उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो आगे आके आपके फिर वमन विरेचन के लिए भी आपको सपोर्ट करेगी, तो वो हो सकता है। I guess you got your answer. Sir, वैसे तो हम आपको रोकने का मन ही नहीं कर रहा है। We are so delighted to listen to you, but time restraint और time constraint होने की वजह से we
should end it here now. And so firstly, thank you so much for taking out time for all of us. It was an absolute pleasure to listen to you, sir. And आपका जो knowledge और experience है, I'm sure सबने बहुत enjoy किया होगा और कुछ न कुछ लेके जा रहे होंगे. And we are very excited for the online session from 17th of November. We will meet again, sir, and we're very excited to see you again on the platform, sir. Thank you so much once again. Yes. On behalf of everyone, sir. Thank you. Thank you. Good night, sir, and good night, everyone. So we'll be meeting now on 17th of November. जिन्हें भी online course के details चाहिए हैं, they can just scroll the chat box. Also, आप groups भी scroll कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको ये message मिला होगा. वहाँ पे सारी details हैं, and we'll meet once again now from 17th onwards. Thank you, sir, and thank you, everyone.